the Jack Refix. Hello everyone, welcome to the Alrighty Talks, or this is episode number 4, where we will be shooting this new episode related to, and the topic for today is reality of masters. So हम लोग आज masters की सच्चाई के बारे में बात करने वाले. तो मेरे साथ मेरे मित्र बैठे हैं, भाविश सांगवी and Tushar Panpalia. Bhavish, would you please introduce yourself concerned to the masters thing? Okay. Hello friends. So मैं I completed my bachelor's 2015 में, और उसके बाद 2 साल L&T में काम किया. और जब मैं L&T में काम कर रहा था, तब when I realized, like, if you want to grow in life, you have to do something else. Like, you can't just be a software engineer in India, because India में इतना सारा competition है software engineers के लिए. You will always be in that bracket in life जहाँ पे तुम ठीक ठाक कमा रहे हो. You can't buy your own home in India. You can't enjoy your life if you are a software engineer in India. So मैंने वो टाइम पे मेरे को मन में आया कि मैं क्या करना चाहिए. So I had options of doing masters or MBA. So I never wanted to be in management. तो मैंने masters, and I was good technically. So मैंने देखा कि masters एक हो सकता है डोमेन जिसमें हम जाएंगे. तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मास्टर्स के लिए क्या करना है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, एंड prospectives क्या है, वहाँ पे जाके क्या होगा. Then so I gave all the entrance exam, clear किया, apply किया, and then yeah, I went to Washington State University, completed my masters, and I'm here now. Okay, that was great introduction. Thanks a lot. तुषार, आपके बारे में क्या है? Hi guys, I'm Tushar. हम तीनों साथ में ही थे L&T में, so वो part like constant ही है मेरे intro में भी. We were colleagues in L&T Infotech. We worked there for I think I worked for 3 years. Bhavesh worked for 2 years. So I was late in that aspect. But yes, to be honest, why I ended up in here, मेरा कोई ऐसा बहुत strong reason नहीं था. My reason when I ask myself is that I wanted to explore. मैं को ऐसे था कि let's see और क्या क्या कर सकते हैं. अभी I'm young, कोई अभी responsibility नहीं है. So I want to explore. I want to see like दुनिया देखनी है, थोड़ी पता करना है. Opportunity मिल रहा है तो like prepare करके जाते हैं, देखते क्या होता है. एंड या आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. एप्टीट्यूड वगैरह बचपन से थोड़ा अच्छा ही था, तो उसमें कोई इतना टफ नहीं गया एग्जाम प्रिपरेशन में, और लाइक स्कोर वगैरह के लिए कुछ इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा. बट या लाइक आफ्टर अ लॉन्ग what we say preparation or like entrance process which lasts for like 1 year, I went to San Jose State University and I have been here for 2 years now. Yeah, I think that's about my journey to masters. Yeah. Thanks for sharing the information. I mean, कैसा था कि ये I mean, everybody has this great, beautiful story of कि masters को क्यों जाना है, क्या जाना है. I mean, some people have like this इमोशनल स्टोरी कि मैंने मास्टर्स क्यों किया. किसी लोगों के लिए प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्टोरी होता है कि मेरे को ये लाइफ में लाइक देयर आर सम पीपल. मतलब कैसे था कि मैं जब व्हेन आई वाज लाइक विद यू गाइस L&T में, आई वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड इन 2015. मतलब उसके भी पहले आई हैड दिस स्टोरी कि मुझे मे बी कभी बाहर जाना है लाइफ में बस. बट देन आफ्टरवर्ड्स आई वाज लाइक कि नहीं यार, इंडिया में करना है, कुछ जो भी करना है वो वैसा था. और आई थिंक आई मेट यू गाइज, एंड जैसे मुझे पता है, मैं भावेश को जानता था पहले से ही, तो पहले से ही हैड दिस प्लान टू do the masters, even just from the very first day of joining the company. And I think Tushar ka nahi tha, right? Tera kind of nahi tha, right? Yes, a funny story is when I was in last year of engineering, लोग मास्टर्स करना तब से चालू करते, राइट? दे स्टार्ट एंड लाइक मेरे भी बैच के लाइक अराउंड 5 या 6 लोग थे जो तब से लाइक इमीडिएटली जब उनका बैचलर्स हुआ वो अप्लाई करना चालू कर दिए थे. तो मेरे को पता चला अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है चीज, ऐसा भी लोग करते हैं इंजीनियरिंग के बाद में. एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई तुम क्यों जा रहे हो बाहर, लाइक क्या इधर ही करो जॉब. आई वाज लाइक जस्ट नाइव, मेरे को कुछ पता नहीं था जॉब क्या होता है क्या नहीं. Patriotic. Just coming out of college, complete noob.
तो एट दैट टाइम अगर लोग तू मुझे तब पूछता कि तू मास्टर्स करने वाला है क्या, तो मैं बोलता तेरे को 100% मैं तो नहीं कर रहा मास्टर्स, मैं यही रखूंगा, मैं यही जॉब करूंगा। इवन लाइक मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ पे मैं करूंगा क्या, बट इतना जरूर पता था कि नहीं करूंगा करके। बट देन डाउन द लाइन लाइफ हैपेंड। यू सी, अब ज्यादा दुनिया पता चलती है, यू लाइक तेरे को लगता है कि ओके मे भी 3 साल जॉब कर रहा हूँ, क्या हुआ इधर, अभी स्टैग्नेंट फील हो रहा है, कुछ तो नया करते हैं थोड़ा, देख व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस। सो या वैसा था। या बट शॉर्ट आंसर इज 3 साल पहले आई वाजंट इमेजिनिंग माई सेल्फ हियर। आई जस्ट एग्जैक्टली वांट टू मतलब ऐड कि मैंने भी मतलब मेरे लास्ट ईयर में ही मैंने मास्टर्स का पूरा प्रिपरेशन जीआरई का वो सब स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, बट देन आई डिसकंटिन्यूड व्हेन आई गॉट इनटू एलएनटी, और फिर एलएनटी में जब मैं सेकंड ईयर में था मैंने वापस स्टार्ट किया था। अच्छा, बट देन अगेन ऐसा नहीं था ना तेरा कि बाद में लाइक यू वर स्टिल टारगेटेड कि यू या वुड स्टिल मेरा गो टू टारगेट यूएस। मास्टर्स ही था यू ऑफ आर, कोर्स, हाँ एग्जैक्टली बट मतलब मेरा इन ऐसा था कि बिटवीन। मुझे एक्सपीरियंस के साथ जाना है, क्योंकि मैंने देखा था बहुत लोग को कि दे वर गोइंग विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट वर्क, मतलब वर्क कल्चर कैसा है, बिकॉज हमने 11th 12th पढ़ाई किया, घसीट घसीट के पढ़ाई किया, उसके बाद सीईटी के लिए AIEEE के लिए पढ़ाई किया, फिर इंजीनियरिंग में, सो आई वाज जस्ट डन विथ स्टडीज। मुझे चाहिए था कि थोड़ा अभी कमाओ, खुद का थोड़ा उड़ाओ, तो वो वाला मेंटेलिटी में था। तो जब एलएनटी में मिला तो आई वाज लाइक ओके, थोड़ा 2 साल इधर रुकते हैं फिर जाते हैं। आई वाज ऑलवेज लाइक श्योर कि 2 साल बाद जाऊंगा। सो या I दैट mean, हैपेंड। if we fucking have to be really honest, it's like at the core पैसा चाहिए था सबको, ऐसा या कुछ ये माय नहीं था। होल रीजन वाज फाइनेंशियल एंड लाइक आल्सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। Standard of life. Yeah, that is actually, yeah, that could be the reason why also people choose masters. तो मेरा ऐसा था, मेरा भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक तुषार जैसे बोल रहा है, मेरा भी वैसा ही था कि मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं प्लान कि हम्म। मेरा वैसा प्लान था कि मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। एग्जैक्टली लाइक जस्ट लाइक तुषार कि मेरे को नहीं जाना है बाहर, घूमने फिरने के लिए ठीक है बट नहीं जाना है बाहर, वैसा था कि वही मेरा तो पूरा भाई पैट्रियोटिक था, मैं तो नहीं नहीं अपने करेंगे जो करना है, एंड स्टिल आई एम अ लिटिल बिट ओवर देयर। ऐसा नहीं कि बट वही अपने देश वे वो, एंड दैट डजंट मीन आई एम डिमीनिंग आवर कंट्री और एनीथिंग लाइक दैट, बट यही था कि काम किया एंड आई हैड लाइक दिस प्लान कि इंडिया में ये ऐसा करूंगा एंड देन समथिंग हिट मी, सम पर्सनल थिंग हिट मी इन माय लाइफ एंड आई वाज लाइक कि ओके एनीवेज जो प्लान था वो काइंड ऑफ डिसरप्ट हुआ है, तो इट्स लाइक मी बीइंग नोवेयर, मैं मतलब ये ऐसा मैं डिवाइस हो गया था कि कोई भी वाईफाई को कनेक्टेड नहीं था। नाउ आई कैन चूज एनी वाईफाई दैट आई कैन, सो बेसिकली आई कैन गो एनी पाथ दैट आई कैन। सो आई वाज लाइक कि सेम, मतलब तुषार ने भी वही बोला कि यंग है हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइफ के साथ, तो व्हाई नॉट। तो मैंने मॉम दैट्स डैड ट्रू। को पूछा कि कैन वी अफोर्ड, एंड दे वर लाइक ओके, दे सपोर्टेड मी, एंड फिर मैंने चूज किया। तो मेरा एक थोड़ा, अभी तुम दोनों का कैसा था कि तुम दोनों का ऐसे ही था ना कि यूएस ही था फिक्स्ड या कोई और कंट्री भी था? नहीं, मेरा यूएस ही था। तेरा uh, तुषार कुछ था? हाँ मेरा भी यूएस ही था। टू बी ऑनेस्ट मैंने ना ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में, लाइक दैट इज द रियल आंसर इफ आई आस्क माई सेल्फ। मतलब मैं चाहता तो मैं पॉसिबली लाइक थोड़ा और एक्सप्लोर करके व्हाट आर माय ऑप्शंस वगैरह वो सोच सकता था। बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग रीजन टू सिलेक्ट यूएस इस था कि लाइक आई कम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, और लाइक मैं हम्म। अगर जॉब भी सोच रहा हूँ इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो मतलब मेरा से था कि आई विल वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम नॉट गोइंग टू स्विच माय प्रोफाइल व्हेन आई फिनिश माय मास्टर्स, ये जरूर फिक्स था। तो ऐसा था कि लाइक आई थिंक यूएस से अच्छी बेटर प्लेस और कौन सी हो सकती है। सो लाइक if I get a job into Bay Area or somewhere, like that is the best place to be. So that was one of the reason why US के against अगर मैं दूसरा कोई option सोचता भी तो USC, like I think I would have chosen US. So yes, that is the that's why I chose US. सो मतलब था ही तेरा पहले से लाइक यू वर हाँ लाइक फिक्स्ड पॉइंट कि यूएस ही जाना है? yes, नहीं, वो जैसे मेरा होता है ना कैसा तेरा था। कि like एक कोई ऑप्शन फिक्स है तो तू बाकी के ऑप्शन के बारे में सोचता भी नहीं, फिर like even if they exist you are like नहीं US ही है। ऐसे। मेरा ऑप्शन नहीं, यूज क्यों था पता है क्या? बचपन से हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, हम सब टीवी सीरीज देखते हैं, so I was fascinated by US. I wanted to live the life or in US. So that was my reason to do masters in US. ओके। दैट Nice. इज लाइक एब्सोल्युटली लाइक हमारे लिए वेस्टर्न इंटर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न साइड ऑफ द Influence, वेस्टर्न साइड ऑफ yeah. द वर्ल्ड क्या है आपके लिए? हॉलीवुड ही थे, एंड दैट्स हाउ
वी सी कि वेस्टर्न लोग ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा था, आई डोंट नो, समहाउ आई वाज नॉट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू यूएस। मैंने एक मूवी देखी थी पोलर एक्सप्रेस करके, ठीक है। ओके पोलर एक्सप्रेस एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें आई हैड सीन अरोरा, अरोरा दैट ओके लाइक ओके ओके यू नो नॉर्दर्न अरोरा राइट, लाइट्स नाइट लाइट्स। हाँ, नॉर्दर्न नॉर्दर्न लाइट लाइट्स, नॉट नाइट लाइट्स, या नॉर्दर्न लाइट्स। तो बचपन में ऐसा देखा था एंड आई वाज लाइक कि बाद में जब पता चला कि फक ये सच है, मतलब इट्स नॉट जस्ट एनिमेशन, ये सच है। तो आई वाज काइंड ऑफ बचपन में फैसिनेटेड विद, आई केम टू नो कि ये कहीं यूरोप साइड में दिखता है ऐसे वैसे। एंड मुझे लाइक ब्रिटिश मूवीज देखे, मतलब ब्रिटिश और वो सब तो पहले से ऐसा था इन्फ्लुएंस का कि यूरोप जो भी है यूरोप वैसा था। तो बट देन अगेन फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यूएस का देखा था ऑप्शन। और यूएस का ऑप्शन यार थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच्ड ऑप्शन है, मतलब यू हैव टू गिव जीआरई टोफेल और बहुत सारा प्रिपरेशन है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो और मेरा जो एज था उस टाइम पे, आई वाज लाइक आई डिडंट वांट टू लूज माय एज एज वेल, आई हैड लाइक दैट कंसिडरेशन एज वेल कि मेरे को ये एज के, मेरे को ऐसा था कि यार फटाक से करो, क्या बोलते हैं, अपना मास्टर्स करो, मास्टर्स करने के बाद अपना लोन खत्म करो, लोन खत्म करने के बाद पैसा कमाना चालू कर लो, ऐसा कुछ मेरा एम था। तो उस हिसाब से व्हेन आई कैलकुलेटेड, व्हेन आई एस्टिमेटेड, सो आई वाज लाइक कि आई वाज लिटिल बिट, मे to be honest, I was not late, I was maybe overthinking. But then again, I thought that okay, I'll not go to US, this is like too much of investment. And to be honest, not just that, like as Tushar said ki uska already, he was good with maths and quant. I looked upon myself and I was like, I'm really not good at it, I was that really bad कि मुझे कंपनी के कॉन्ट्स क्लियर करने में भी डिफिकल्ट जाता था, अपने कंपनी का वो होता था, क्या क्या अच्छा वो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड होता था। तो इवन दैट वाज काइंड ऑफ रियली डिफिकल्ट फॉर मी, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बाकी के बाकी मेरे लिए ऐसा था यार बस एप्टी क्लियर हो जाए, बाकी मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, एंड आई थिंक इंडिया में ऐसे ही है, एप्टी क्लियर हो जाए बाकी कंपनी क्लियर ही होती है, बट आर एस अग्रवाल भाई आर एस अग्रवाल से ही कुछ क्वेश्चंस आए थे एलएनटी में, इसलिए मैं क्लियर हुआ। मैंने जेआरई के लिए भी आर एस अग्रवाल से प्रिपेयर किया था। मैंने बहुत कम टाइम में, मैंने 2-3 महीने में प्रिपेयर करके पूरा टेस्ट दे दिया था। तो मैंने उसके लिए भी आर एस अग्रवाल ही प्रिपेयर किया था। आई थिंक मैंने वो कोई एक फेमस बुक है मैनहट्टन 5 LB, आई थिंक वो हर मुझे कोई याद भी नहीं रेकमेंड है सब। करता है। वो मैंने वो बुक, आई मीन पढ़ा भी नहीं बुक, आई वाज जस्ट लाइक अच्छा इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं, और अपने को कोई नहीं आता है तो वो सेक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं बाकी दैट तो इज ट्रू। मतलब ठीक है। वो क्योंकि मेरा अप्रोच ये था कि आई मीन आई न्यू लाइक ठीक है हो जाएगा, एंड मैंने एक स्टार्टिंग में ही लाइक इवन बिफोर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग आई वाज लाइक एक टेस्ट दे देता हूँ कि टू सी वेयर आई एम। I was like I was scoring decent, so I was like एकदम मेरे को ज्यादा भी टाइम डालना नहीं इसमें कंटेंट तो एटलीस्ट। सो आई वाज लाइक चलो देख लेते, स्कैन कर लेते एक बार कौन से टॉपिक्स है, वो वाले टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए। बट हाँ लाइक इंग्लिश के लिए बहुत प्रिपरेशन किया था, लाइक क्योंकि वो भाई अलग लेवल है वो, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लगता है। आई थिंक वही मेरा एक प्रिपरेशन एज अ, आई थिंक उसी में टाइम गया प्रिपरेशन में, बाकी तो इतना कुछ किया नहीं। राइट। तो मतलब मैंने तो ऐसा था कि वही वही वो सब देखा कि बहुत बड़े प्रिपरेशंस है, और एंड आई न्यू कि मुझे बहुत टाइम जाएगा। सो आई थॉट कि लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टकट, लेट्स फाइंड द कंट्री which which doesn't have such high fund to entrance things and everything like that. तो मैंने सोचा कि ओके, मैंने फिर बाद में थोड़े अलग अलग कंट्री भी देखे। मैंने पहले जस्ट आफ्टर बेस्ट यूएस के बाद बंदा देखता है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी देखा, जर्मनी का ऐसा चीज था कि जर्मन आना चाहिए। फर्स्ट एग्जैक्टली दैट वाज लैंग्वेज constraint, but then again if even if the जर्मन का वो होता है, ठीक है, वो कोर्सेज थोड़े से इधर उधर थे। उसके बाद ऐसा सीन था कि यार जर्मनी का ऐसा है कि यार बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज है। पहली बात, जर्मनी लोग क्यों जाते हैं पता है एजुकेशन के लिए? इट्स बिकॉज वहाँ पे फ्री फ्री एजुकेशन एजुकेशन। मिलता है, हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरे है ना मार्क्स अच्छे नहीं थे, मतलब जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री में जो मेरे एग्जैक्टली, तो मेरे मार्क्स, हाँ एग्जैक्टली सेम बिल्कुल, सेम। तो अच्छे नहीं थे। तो आई वाज लाइक कि वो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हुआ। मतलब मुझे याद है मैंने कंसल्टेंट को कॉल किया था एंड शी वाज लाइक कि नहीं, मतलब मिनिमम 75% के ऊपर तो होना चाहिए। एंड अपने टाइम परसेंटेज थे, इफ यू रिमेंबर, जीडीपी नहीं आई था। नो। हाँ, तो वाज लाइक 75% तो मिनिमम चाहिए। मैं लेके गया था 60%।
एंड दैट टू लाइक लास्ट 2 सेम नहीं ओवरऑल सेमेस्टर्स की 60%. मतलब वो था ना एक मीम कौन सा, जितना था उतना लेके आए हो. तो वैसा वाला सीन था एंड आई वाज लाइक कि चलो भाई अपनी हैसियत नहीं है यहाँ पे. फिर मैंने देखा लंदन, लाइक यूके, नॉट लंदन, यूके देख रहा था. एंड यूके देखा तो यूके का सीन था कि वहाँ पे जॉब के थोड़े सीन थे और उस टाइम पे ब्रेक्सिट का सीन था. तो ब्रेक्सिट के बाद तभी है ना कुछ जॉब सर्च पीरियड खाली 1 साल या कुछ बहुत कम टाइम किया था. तो आई वाज लाइक कि इतना पैसा डालो और अगर जॉब नहीं मिला तो लोन मतलब घर पे आके मतलब इट्स 1 साल वेरी क्यों गए. डिफिकल्ट. हाँ 1 साल आई जस्ट वेंट फॉर टू सी द कंट्री, दैट्स इट. तो नहीं तो फिर मैंने यूके पे कैंसिल किया एंड आई वाज डन, आई डिडंट न्यू एनी अभी अदर भी हमारे कंट्री. कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब नहीं मिला जो यूके गए. लाइक तेरे बैचमेट्स? जो हमारे साथ थे नहीं एलएनटी में. नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट योर बैचमेट्स और या फिर मतलब तेरे बैच में लाइक जो तेरे साथ आए थे या तेरे बाद 1 साल जो आए थे? मेरे साथ आए थे मतलब यू टॉकिंग अबाउट 2017 में जो आए थे. नहीं, when did they pass out or when did they graduated? 2019, right? 2019. And it's like 1.5 साल हुआ जॉब नहीं नहीं मिला. है, जॉब नहीं है. We will come down to that point as well. मतलब वही. हाँ तो ऐसा था कि वो सब एस्टिमेशन करने के बाद आई वाज लाइक कि छोड़ो. फिर कहीं से हवा से और इधर इधर से कंसल्टेंट से वगैरह आई केम टू नो अबाउट आयरलैंड एंड फॉर मी आयरलैंड वाज लाइक कि ये क्या कंट्री है. लाइक फॉर मी दिमाग में आयरलैंड आई जस्ट न्यू कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हॉबिट एंड स्टफ लाइक दैट क्लिफ्स और वही सब है आयरलैंड. आई डिडंट नो कि आयरलैंड हैड दिस गुड यूनिवर्सिटीज एंड फिर यूरोप का आयरलैंड झारखंड. चूज. Sorry, this is a very bad joke. Never mind. भाई झारखंड वाले मारेंगे अगर झारखंड वाले Yes, देखेंगे yes, तो. yes. I apologize, Jharkhand people. Sorry. डीएम मी फॉर हिज एड्रेस. तो हाँ तो ये सब हम लोग ने किया. हम लोग ने मतलब मैंने देखा कि ओके ये सब ऑप्शन है और फिर मैंने ये चूज किया एंड आई वाज लाइक इट. वही फिर आते कैसे तो ये मैंने कंट्री चूज किया एंड फॉर मी इट वाज लाइक कि 1 साल का मास्टर्स था. आई चूज अ डिफरेंट स्ट्रीम. आई चूज लाइक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स वैसा स्ट्रीम लिया. 1 साल के बाद इट काइंड ऑफ thankfully fortunately it worked for me. Nice. So that was the thing कि मैंने countries ऐसा मेरा thought process था country कौन सी choose करूं. तो मतलब इसी पॉइंट पे आते हुए कि तुमको क्या लगता है लाइक हम लोग है ना बहुत सारा कैसे होता है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी को देख के. तो like coming back to Tushar, like I think Bhavesh had this In mind. in mind कि मुझे जाना है. Coming back to Tushar, like कि तू कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ था क्या? क्या सोच के तूने सोचा कि मास्टर्स करना चाहिए? लाइक ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था? Oh, just specifically masters. I think trigger point was like 3 साल LNT में काम कर चुका था मैं, right? And to be honest, I wasn't growing technically. I was like doing the same thing every day. मतलब I don't want to blame India for it or like I think the kind of job I was doing, I was not really learning anything. उसमें ऐसा था कि रोज आ रहा था मैं ऑफिस में, कोडिंग कर रहा था, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है या फिर पीछे क्या चल रहा है दुनिया में कुछ नहीं पता. बट 3 साल से वही आ रहे, वही चीज को ओपन कर रहे, वही कर रहे. ऐसा लाइक यार इंजीनियरिंग में इतना कुछ सीखा हमने. आई कम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, राइट? तो दुनिया भर के सब्जेक्ट सीखे, दुनिया भर का इतना थियोरी और ये सब सीखा. आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही मतलब जेनेरिक हो रहा है और कुछ इसमें लाइक प्रॉस्पेक्ट लग भी नहीं रहा आगे की सीखने को मिलेगा या नहीं. So I was like, यार, no, this is not working out. Either I have to switch the job, or I have to maybe explore my like further education options. तो उसमें मैं देखा M.Tech कर सकता हूँ, मास्टर्स कर सकता हूँ. I think यही दो मेजर like ये होते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए coming from software engineering background for me at least. तो ऐसे था कि यार M.Tech करूंगा, उसमें प्रिपरेशन बहुत लगेगा एंड मैं ऐसे पक गया था पढ़ाई करके. आज लगे अरे यार अभी बहुत पढ़ाई कर ली यार, अभी ना थोड़ा चिल मारते हैं और सिर्फ जस्ट जॉब करते पैसा वैसा कमाते हैं. तो M.Tech मैंने रूल आउट किया. फिर दूसरा ऑप्शन था मास्टर्स एंड देन इमीडिएटली मैं 3 साल
पीछे चला गया। लाइक मैं तभी तो सोच रहा था कि कभी नहीं करूंगा अभी लाइक ये थोड़ा एकदम सडन शिफ्ट हो गया मेरा। लाइक चलो ठीक है, फिर मैंने एक्सप्लोर किया और लाइक मेरे बैच के काफी लोग यूएस जा चुके थे तब तक के। सो यू नो आई कंप्लीटेड 3 years इन द जॉब एंड लाइक इमीडिएटली आफ्टर मेरा बैचलर्स हुआ था तब से लेके तो लाइक ड्यूरिंग दैट 3 year विंडो काफी लोग मास्टर्स करने जा चुके थे। लाइक पहला पॉइंट तो ये होता है कि अपन अगर वहां जाने वाले हैं तो लेट्स आस्क देम कि उनका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन कांटेक्ट विद देम एंड क्या फॉर्चुनेट, मतलब मैं था उनके कांटेक्ट में, अच्छे दोस्त थे तो कुछ भी बोल रहा हूँ, नेवर माइंड। तो उनसे बात किया और उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस का पता किया, भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उधर आने के बाद में कितना टफ है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा वहां से आइडिया आया एंड यस आई थिंक वही था, वो ट्रिगर एक था ही कि भाई अभी स्टैग्नेंसी आ रहा है, बहुत बोर हो रहा है, एक्सप्लोर करने के लिए टाइम बचेगा नहीं अगर अभी नहीं किया तो। हाँ, दैट वाज एक्चुअली अ गुड रीजन। क्यों आई वाज ऑन द एज, आई वाज लाइक अभी अगर मैंने नहीं किया और मैं और थोड़ा लेट कर दिया और पुश कर दिया इस टाइमलाइन को तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। आई वाज लाइक अभी दिस इज हाई टाइम, लेट्स डू इट। तो आई थिंक दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। सो टू ऐड टू हिज पॉइंट, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि as he said कि उसका stagnancy आ गया and he realized that. So some people don't realize that they are stagnant in life because they are okay with it, they are comfortable with it, and some किसी को चलता है लाइफ में कि किसी को चाहिए कि okay they want a comfortable job where they work 9 to 5 and they go home. So some people are okay with that. So to those people I would say कि if you are comfortable with your own job right now, so you don't have to do masters. Not everybody has to do a masters. Yes, and being comfortable is not a bad thing. I mean, Yeah, that's it's just a not bad. personal It's not bad. Yeah, choice. Yes. See, true. कैसा है कि I think after certain time you seek comfort, right? किसी भी चीज में you want that Complacent हो जाते हो आप. stability. Exactly. You want that stability. So it's like कि कैसे होता है कि ये है ना, हम लोग रेस में चले जाते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, एंड आई थिंक फोमो वाला चीज हो जाता है कभी कभी That's true. कि कैसे कि मेरे दोस्त लोग हुए अभी अभी देख, कैसे पता है अपना जो ग्रुप था, जो LNT वाला ग्रुप था, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउटसाइड ऑफ इंडिया। All. तो यस ऑल ऑफ Everyone. द पीपल, एवरीवन इज काइंड ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो अभी अपने को फोमो फैक्टर नहीं है, बट आई थिंक इफ यू गो बैक इन समवंस, लेट्स से मैं रहता या कोई, कुछ तो हो ही जाता ब्रो, लाइक वो कैसे थोड़ा सा किसी को हो जाता कि यार मैं मेरे इधर ही रह गया और पीयर्स, सब आगे चले गए. हाँ, and which everybody has this different reality construct, okay? It's not like कि मतलब ऐसे नहीं कि जो बाहर है वही सब बेस्ट हो रहा है या फिर क्या हो नहीं, रहा है। to add to that, अभी मेरे engineering, I completed engineering in 2015, okay? और मुझे अभी भी मेरा किसी engineering के friend के कभी message आ जाते हैं कि like should I consider masters, you know, after 5 years, after almost 6 years, 5.5 years, they are still now they are realizing that okay, मतलब job ये हो गया, बहुत ही stagnant हो गया, now we want to do something else. So people are realizing still. So it's okay, like if you think कि okay अभी नहीं करना है, बाद में करना है, you can get some job experience and come for masters. It's completely okay. You don't have to be in that race कि okay सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी सीधा engineering करके जाऊंगा. You can work for a few years. You can see okay do you like computer science or not. If you want to do MBA or not, तो पहले explore करो अपने आप को पहचानो, फिर masters करने आओ, ऐसे ही मत आ जाओ. ये जो सेल्फ डिस्कवरी वाला पॉइंट है, दैट इज वेरी क्रूशियल। मतलब कैसे होता है, तुम्हारा मोटिवेशन अलग हो जाता है ना तभी। True. नाउ यू हैव लाइक ग्रेट मोटिवेशन। आई थिंक द कॉमन पॉइंट फॉर थ्री ऑफ अस वाज कि वी हैड दिस गुड मोटिवेशन बिहाइंड अस कि अपन को क्यों करना है, राइट? तो उस स्ट्राइव के हिसाब से वी डिड इट, यू नो। कैसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं because of peer pressure, not someone is pressuring them, but वो internal peer pressure हो जाता है उनके अंदर, and they choose any kind of streams, you know, any kind of streams। और मैंने honestly मैंने है ना वैसे बहुत सारे colleges and universities देखे हैं बाहर, like UK में तो ऐसे बहुत सारे भर भर के, ठीक है। they are just made to loot people from there are such many in kind of a US too. people। There are many in in US. US as well, right? Okay, that's मुझे नहीं पता था यूएस का मार्केट, बट देन आई सीन लाइक यूनिवर्सिटीज कैसे होता है, और कैसे ये आजकल बहुत लाइक ऐसा मार्केटिंग टैक्टिक्स और ये कंसल्टेशन वालों को पैसा खिलाया जाता है ना कि इन अ वे दे शो यू कि यूनिवर्सिटी इज लाइक अ रियली गुड यूनिवर्सिटी, एंड इनके पास किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन होता है,
जस्ट लाइक अपने मुंबई साइड में होता है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के अफिलिएशन के नीचे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, ऐसे यहाँ पे भी है जो अपने को पता नहीं है। Yeah, for sure. तो उस हिसाब से ऐसा हो जाता है कि you come down just for the sake of coming down outside, like just to come out, and then after मैंने ऐसे लोग बहुत देखा कि लोग रियलाइज कर देते कि मैंने क्यों ये स्ट्रीम क्यों ली मैंने, या फिर ये कंट्री क्यों ली मैंने ये भी देखा कि ये कंट्री क्यों ली, मैंने अलग कंट्री लेना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था। तो एंड टिल देन क्या होता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता है, and not just money, like emotions, also your Also like time, which is the time most important thing right now, like in time our age. अभी जब हम उस टाइम पे सोचते हैं कि मास्टर्स करना है नहीं करना है, the time is the most important thing, right? Like money तो तुम अभी कभी भी कमा सकते हो, we are not like at that age कि हम मनी के बारे में उतना सोचे, but मनी से ज्यादा टाइम है कि if you are investing 2 years in something, is it worth it? right. तो वही है, मतलब you have to understand। और कैसे यार मतलब talking about the factor just now when you're talking about like money, time, कैसे होता है टाइम के साथ, इट्स नॉट लाइक ऑब्वियसली जैसे ऐसे नहीं कि यू हैव टू कंस्ट्रेंट विद द टाइम। आई हैव सीन पीपल coming here for the masters even in their 30s or 35s or something like that. I've seen them and I've seen them growing as well. It's not like कि ऐसे नहीं होता, but the tangent that you have to understand is कैसे होता है with time तुमको तुम जितने यंग होते हो क्या होते हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा भाग के आती है तुम्हारे पास एज कम्पेयर टू दी, वो एज फैक्टर आ जाता है, तुम कितना भी बोलो ना, एज फैक्टर काइंड ऑफ प्ले हो जाता है and एंड देन also you are more competitive. हाँ कैसे मतलब उस एक एज फैक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है ना, कुछ सालों के बाद नहीं आती, बिकॉज क्या होता है कि तुम है ना वेरिएबली नहीं रह जा पाते ना उस जोन्स में, क्योंकि कैसा होता है लाइक अंडरस्टैंड तुम 35 तक गए हो, तब तुम किसी चीज में मास्टरी किए हो ऑलरेडी, एंड द कंपनी वुड आइडेंटिफाई जस्ट मास्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, It और doesn't make कैसे sense to do masters in 35, being very frank. Like you are already in industry for what, 10 12 years. हम्म Not तो worth the उसके बाद risk also. You not are worth it, also yeah, मैं वही बोलूंगा. इतना या पैसा लाइक डाल के ऑनेस्टली, करोगे। बट देन कैसा होता है कि नहीं And हर then you एक का can मैं come to वही US from H1B. Yeah, Why? of course. Which many people do, right? Which many people do. Like हर many एक का people मोटिवेशन भी ask, अलग होता है, लाइक फॉर हाँ, एग्जांपल कैसे पता है, किसी किसी लोग को सच में आई हैव सीन पीपल ऑन लिंक्डइन, दे वांटेड टू डू मास्टर्स, दे वांट हम्म. मास्टर्स इन देयर लाइफ, दैट आई कैन Yes, अंडरस्टैंड। एक्चुअली हाँ, मतलब ये इसलिए भी ट्रू है क्योंकि काफी लोगों का ऐसे होता है कि दे थिंक अबाउट जब हम 50 साल के होंगे तो व्हाट इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे हैव अचीव्ड इन लाइफ, राइट? वो भी काफी लोगों का होता है। मैंने मतलब इससे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं कि दे जस्ट वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ कि भाई ये मेरा हाईएस्ट डिग्री था। Okay. दैट्स नॉट रियली अ गुड मे बी। To boast. यस, But बिकॉज masters हो. बैचलर्स का ठीक है, बैचलर्स में यू डोंट हैव दैट मच, क्या बोलते हैं उसको, like you are exploring at that time. Masters is more of a choice. Like if you are into it, then you have to give your 100%, and it is there are some expectations also कि भाई True. अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो then एक underlying expectation कि ये तुम्हारा mindset है कि now you are actually passionate about it, or you have to contribute, or you are willing to learn all that stuff. So doing masters just for the sake of it is not really a good motivation. I think so. That's true. बट हर एक मतलब आई वुड स्टिल अगेन आर्ग्यू टू द पॉइंट कि हर एक के मोटिवेशन अलग होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक एक हर एक इंसान का पैराडाइम अलग होता है। लाइक इफ समवन रियली वांट्स टू मेक मनी and then he's coming at the very late age, then Why maybe not? that is probably that wouldn't work. Maybe if someone really just want to do masters in the like, and it might work, ऐसा नहीं बोल रहा, it could work, मतलब I'm still again conflicting with my points, but हाँ मतलब हर एक का वही मनी फैक्टर अलग होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हाउ मच डज इट कॉस्ट इन यूएसए, लाइक एक ऑन एन It एवरेज? really depends on the university. There are some university वहाँ जहाँ पे आपको average I would say 30 to 40 lakhs average है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में above 50 lakhs भी है. Just the fee? Yeah, the fee for 2 years. Hmm. And so and like
how would how would like मतलब कहीं मनी पर्सपेक्टिव से बात So, करेंगे तो कैसे मतलब क्या एक माइंडसेट तुमको लगता है एक so यूएस I में think जाने के लिए? the most important thing about masters is money. Like, do you have it? Because if you don't have money, you can't do masters. So many people opt for loans, student loans, and like people take student loans worth to 20 lakhs or 30 lakhs, and I would say once you get a job, it's very easy to pay off those loans. But if you get a job, if you don't get a job, then it's really really difficult on you and your parents to pay off those loans, because like the interest rate is almost 10% on those loans, so it will rise, right? तो अगर आपको सच में अगर आपके पास स्किल है और आपको मास्टर्स करना है, and you are sure कि you can get a job and you are confident about yourself, then you should do masters. अगर आपको confidence नहीं है, आपके पास skill नहीं है, तो I would suggest first develop the skills and confidence and then do masters, because वरना आपका पैसा waste होगा, ऊपर से आपको interest लगेगा. And just एक thing वहाँ पे बोलना चाहूंगा. I mean, and it is, I mean, लोगों का ऐसा assumption होता है कि once you do masters you'll get a very good job, which is not always true. I Not mean, always true. given the मेरा खुद का मतलब when I started master, मेरा भी यही assumption था कि masters करने के बाद में यार like पैसा तो मिलने ही वाला है, मतलब क्या ऐसे झटके में आ जाएगा. But that's not really true. Now that I see मतलब मेरे surroundings में and लोगों के experiences क्या क्या है, so मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि when you take that loan, right, student loan or something, you can be in a situation जहाँ पे it becomes a burden, That's like true. after a point of time. So the key word is to get a good job here, just not get a job, right? And तो वो एक है, like वही ऐड करना चाहता था कि it's sometimes difficult to get a good job. So you and ये इसलिए भी important है कि when you start masters, right, you have taken education loan of let's say $40 lakhs, तुम यहाँ पे आ गए, 2 साल का जो तेरा मास्टर्स कोर्स है उसमें you have two things going on. One is being a good master student, जहाँ पे तेरे से जो expectation है वो तू fulfill कर रहा है, and to cope up with the background pressure of financial what do you say, your financial things, to manage those. So you don't really have a like वो बेफिक्रा वाला attitude जो होता है ना, that you have to remove because you can't afford it, right? If you be with that mindset, then these things will suffer. So ये एक additional pressure बन जाता है यहाँ पे जो that I wanted to address. It's completely off topic, but anyway, No, नहीं, yeah, it's not. address No, करना no, चाहता था. to like add to it's that related point. to masters. I don't think so. It's completely off topic because I've seen people कि आ जाते हैं ऐसे नहीं, people do that, like people, like I've seen people turning their life around. I've seen that, like even with all the pressures and everything. But कैसे मतलब I think अपन तीनों में वैसे काइंड ऑफ ऐसे लोग हैं कि अपन रिस्क असेस करने वाले और एकदम बैलेंस लाइफ जीने वाले, लेकिन ऑन दी बैलेंस, मतलब ज्यादा एकदम रिस्क नहीं और वैसा करने वाले. बट ऐसे भी मैंने लोग देखे अलग लेवल पे रिस्क खेला है और लाइफ टर्न अराउंड भी किया है. बट मैंने ऐसे भी लोग लेके जो रिस्क खेले और गिर गए. ठीक है. हाँ, तो So कैसे होता to है add कि to that point, हाँ, like तेरा जो point है रिस्क वाला, so लोग आपको हमेशा मतलब अच्छी स्टोरी सुनने मिलेगी कि ये वहां पे गया उसको इधर इतना अच्छा जॉब मिला, ये वहां गया उसको, लेकिन you will never hear those stories where people actually lost and where people actually failed, because nobody wants to tell those stories. Nobody will Yes. tell you कि okay मैं फेल हुआ जाके, कोई नहीं बोलेगा आपको. तो आपको ऐसा हमेशा जो स्टोरीज मिलेगी वो अच्छी मिलेगी. So it's a bias. There is a bias in people's there's a perception about bias in masters. storytelling, also in storytelling ना. हाँ, also in It's storytelling. So super nobody common. tells the truth कि यहाँ पे असली में क्या हो रहा है, क्योंकि असली में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, so I will not take their names, but somebody is working in restaurant for last 6 months, working in restaurant, okay, because she couldn't get a job. So it's not that easy. So you have to think about all these things, and the reason for like her, she never got a call from any company. Like she was a good student, she got a good GPA, but she didn't get a call from any company because she didn't have any work experience. दैट इज ट्रू यार, दैट इज ट्रू. मैंने यहाँ भी देखे कि यहाँ भी वही सीन होता है. एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक द कंट्री दैट यू चूज, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वहाँ पे फील्ड चलता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे देखो कैसा होता है कि ऑब्वियसली कितना भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, ये मुझे है ना एक मेरे दोस्त ने बताया था
when I was thinking about UK, and actually he had given me the reality story of the UK. कि उसने यही बोला था, इस शब्दों में कहा था कि ब्रो तुमको 10 कहानियां सुनाई देती है बहुत अच्छी वाली, कोई तुमको 100 कहानियां बुरी चीज नहीं बताता, कि 100 फेल्ड कहानियां बताती नहीं, तुमको 10 बेस्ट कहानियां सुनाई देता है, तुम उसी में प्लेस रखते हो। तो उसने ये बताया था कि देख कैसे होता है कि let's say for management, ठीक है, I was kind of very much keenly kind of an interested to a management, and that's the reason even I chose here like a management and a technical, a mixed subject, you know, so I could place my feet on both of the stones. तो लिटरली मैंने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अजीब हो रहा है वो। बट एनीवेज, मतलब एक पत्थर से दो जो भी पंछी मारना चाहता था, बट एनीवेज तो वैसे मैंने देखा 2 पैर 2 नाव में। ग्रेट, हम नाव पे रहेंगे अभी। तो हाँ, तो यही था कि उसने ये बताया था कि ब्रो तो मास्टर्स फॉर मैनेजमेंट जा रहा है यूके में, पहली बात तू मैनेजमेंट करने के लिए जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दिस पीपल ऑलरेडी इन यूके जो अच्छा इंग्लिश बात करते हैं, उनके खुद के लोग, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोप वाला सीन है, तो तू कितना भी बेस्ट हो ब्रो, तेरे कितने भी तेरे स्ट्रैटेजीज या फिर जो भी तू मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी जस्ट लर्निंग मैनेजमेंट फॉर प्रोबेबली व्हाट 1 or 1.5 year, वो लोग बचपन से करते आ रहे हैं मैनेजमेंट, एंड और मैंने देखा है द वे दिस पीपल बिहेव, यू नो, कि लोग पार्ट टाइम वगैरह करते हैं ना, तो दे नो वर्क कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपन को वर्क कॉन्सेप्ट कब आता है, जब 22 साल के घोड़े होते तब आता है कि काम क्या होता है, ठीक है। बाकी के लिए, बाकी नॉर्मली अपने लिए काम क्या करने, मम्मी बोलती है ये लेके आओ, तो वही काम था अपने लिए। यहाँ पे लोग 16 से स्टार्ट, वो भी तेरा मूड नहीं है तो तू मना कर देता है, नहीं अभी नहीं जा रहा मैं। एग्जैक्टली सो इट्स लाइक कि काम वाला कॉन्सेप्ट, जो वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, वो अपने को इतना लेट समझ में आता है, एंड दिस पीपल ऑलरेडी लर्न वर्क एथिक्स सिंस द चाइल्डहुड कि वर्क क्या होता है। तो इज लाइक कि मैनेजमेंट तू करने जाएगा ना, तो ऐसे होगा, पहली बात तू इंडियन होगा, तेरे को वीजा स्पॉन्सर करने की जरूरत पड़ेगी उन कंपनी के लिए, तो इवन इफ यू आर बेस्ट दे वुडंट चूज यू ओवर टू दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज यार जाहिर सी बात है कि पता नहीं वीजा के रूल्स वगैरह चेंज हुए उस कंट्री में, तो कभी भी तुमको भेज सकते हैं बाहर, राइट। तो वो एक फैक्टर भी चूज करना पड़ता है कि एक कंट्री में कौन से पर्टिकुलर स्किल्स कम है तो ही एक इमिग्रेंट को जॉब मिलेगा, दैट इज ट्रू, यू नो। तो ये काइंड ऑफ एन एक अलग लेवल पे जॉब का मैं बोल सकता हूँ। बट कमिंग डाउन टू एजुकेशन, एजुकेशन का क्या सीन था, लाइक क्या एक्सपेक्ट किया था इंडिया में? एजुकेशन में मतलब लाइक प्रॉपर्ली तूने कैसा बीइंग एक्सपेक्ट किया वेरी था, फ्रैंक आई एजुकेशन कैसा थॉट होगा? कि एजुकेशन मतलब, सो फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग किया था, सो वी न्यू द व्हाट वी विल लर्न, बिकॉज engineering में हमें पता चला कि we have to learn ourselves, like teachers are there to help you but they will not be the one who will feeding you like they do in school. So masters में that concept is that like it here, because masters में प्रोफेसर्स आएंगे, वो तुम्हें बोलेंगे कि ये करना है, they will not be telling you कि ये पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे, no, you have to do it yourself because they consider it like, किसी ने जाके प्रोफेसर को पूछा कि सर ये कैसे करना है, so उसने बोला कि you are master student, you should know that, सीधा। Yeah, so they expect that from you because when you're coming for masters, they expect that you know basic things and you know most of the things and you know how to figure out things, just not know things, you know how to figure out things, because they will not be spoon feeding you here. So they will give you assignments, you have to do it, figure out how to do those. That's all. So Same, that I is think. like, that is about education. And the second thing is ki, when you are doing masters, there is also pressure of not just like studying, but assignments, exams, and also working. Like you have to do your own job, you have to cook your own food, you have to travel, not by, you don't have a car here when you are doing masters, you have to travel by bus, so traveling time and then cooking time, then you have to wash your utensils, wash your clothes, and so all that takes time, you have to consider all that, you have to do your own job, like in, it's not like in India जहाँ पे काम वाली बाई आके आपका घर साफ करेगी, यहाँ ये पे ऐसा नहीं लिटरल होगा। चीज है, पता है ये कैसा हुआ था? पता है हमको, है ना, पहला घर था ना, पहला घर देने के पहले वहां का जो लैंडलॉर्ड था, उसने पूछा कि वुड यू कीप दिस हाउस क्लीन,
मतलब ये कौन सा बेहुदा सवाल है, हम क्या खराब करेंगे? तो बाद में ही केम अप विद दैट पॉइंट, यू नो, कि in India you have maids, servants and stuff like that, you know, to clean your house, to make food and all like that. In a way, indirect way, he wanted to say कि you are mama's boy, you know. तो would you be able to? Like हाँ हम लोग करेंगे, and literally तो अपने को जैसा लगता था और अलग ही वे, मतलब इनको expectations of cleanliness and everything is totally different. It's totally different, true. मतलब जो अपने को क्लीन है ये इनके लिए पहले ही अनक्लीन है वो. Depends तो on like person to person. हाँ एग्जैक्टली, पर्सन टू पर्सन, बट वही है कि तो वो सब चीज था कि यू हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड यू हैव टू लाइक मैनेज एवरीथिंग, यू नो. आई थिंक डूइंग That is the cultural मास्टर्स. difference, right? वहाँ का और यहाँ का कि हाँ वहाँ हाँ पे हाँ बचपन से लोग खुद का काम खुद करते हैं. They don't depend on anybody else. Like वहाँ पे if so for example cars, यहाँ पे भी लोग खुद का कार खुद you know ठीक करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं. जो अभी for example मेरे को नहीं आता वो सब करना, so I have to go to store और वहाँ पे पैसा देना पड़ता है and it costs a lot. बट यहाँ के लोग मैं देखता हूँ बस में पार्किंग में बैठ के खुद का कार ठीक करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, all they do it themselves. So that's a cultural difference because वहाँ यहाँ पे उनको बचपन से सिखाया जाता है कि खुद का काम खुद करना है. राइट. कमिंग डाउन टू द कल्चरल डिफरेंस, लगा था ना सबको कि आके फिरंग कंट्री में जा रहे हैं, हम बैठेंगे फिरंगी लोगों के साथ मास्टर्स के लिए. ये कितना सच्चाई है ये बताओ. तुषार, you मतलब can मैं go मेरे first. से चालू Yes. करता हूँ. आउट ऑफ 100 पीपल 90% वर इंडियन, 10 लोग यहाँ के इधर उधर के यूरोपियन लोग थे, एंड दे यूज्ड टू गेट स्केर्ड बिकॉज यार ये कहाँ आ गए हम लोग, बेचारों को लगता था इंडिया आ गए. स्टैटिस्टिकली अगर तो देखेगा तो दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन, राइट? और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? Almost 1.3 बिलियन, 1.5 almost. 1.5 बिलियन. और those are citizens, right? If you include बाकी के जो like जो NRIs है और जो बाहर सेटल्ड हो गए, उन सबको पकड़ के आई थिंक 2 बिलियन तो हो ही जाएगा, राइट? 2 बिलियन पकड़ सकते हैं हम. ज्यादा हो गया. अच्छा, ये 2 बिलियन ज्यादा हो गया. 1.5 I think सब चलो मिला ठीक के. है, चलो ठीक 1.5 है. डाल दे. हाँ तो तू इतने मतलब भी बाहर नहीं statistically, लूंगा. even if you figure out it statistically, there's a probability that no matter where in the world you go, you'll always find an Indian, right? so That's true. so That's that true. is that. But coming down to masters, I would say अभी मैं मेरा बताता हूँ कि मेरा कंप्यूटर साइंस SJSU से किया, राइट? तो हमारे इसमें 30 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. So 30 में Indian? से सब इंडियन. नहीं सब नहीं, ऐसे दो या तीन लोग आई थिंक, एक 2 या 3 लोग चाइनीज प्लस अमेरिकन होते हैं, बाकी सारे इंडियंस. बाकी सब अपने जैसे ही लोग जॉब वॉब करके आए हैं. I'm not मस्त. disappointed. Thank you. I That's think the true. That's true. true for every university, no matter where you go. मेरे यूनिवर्सिटी में उतने इंडियंस नहीं. मेरे यूनिवर्सिटी में I would say कि in the match of 30, 15 इंडियंस थे और 15 बाकी तो. Okay. हमारा Good. तो ड्रास्टिकली But मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्लास Yeah, of course. San Jose is fully Indians. Yeah. Like not just the university but the whole communities. Yeah, because everyone is like Bay Area में जॉब कर रहे हैं. Majority of jobs are in Bay So Area and everyone San wants Jose to is settle there. basically like it's like an extension of Pune University, right? Actually, that's a sister city. That's a fact. Like Not just San Jose Pune, is like considered a sister city of Pune. There is a Shivaji Maharaj का statue है यहाँ पे एक पार्क में, जहाँ पे उन्होंने लिखा है क्या proper बात कि this कर is रहा a sister Wow, city of that is Pune. nice. Yes. Oh, nice. Wow. And it is Okay, that's also I mean I love this city because मेरे को Weather-wise, it's ऐसे same. weather-wise it is same. To the extent culture-wise also I think kind of same, not completely, To but Pune. To not Pune. completely. Yes, that's why I Do wanted you to find add like that. Sujata Mastani on the street? No man, I wish. I think culture-wise, it's more similar to Hyderabad because mostly you will see I've never been to Hyderabad, so Hyderabad. I don't know. No, I never been to Hyderabad, but I saw Hyderabad in San Jose. Okay. Yeah, I don't know. Maybe. बट हाँ, एक जो तूने एजुकेशन का क्वेश्चन पूछा था ना, उसके बारे में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि मैं ऐसे था कि
सैन जोसे स्टेट में आई थिंक मेरे आई थिंक एक ही दोस्त था, उसको मैंने फोन किया क्योंकि मेरे को वहां से एडमिट आ गया था राइट, अप्लाई करने के बाद में। तो आई वाज लाइक मैं यार कैसा है यूनिवर्सिटी क्या है, और वो कंप्यूटर साइंस में सेम कोर्स। सो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू लिव हिज लाइफ whatever he has lived, तो he is the best person to talk, right? True. उसका पर्सपेक्टिव जानूंगा तो I'll get like proper I'll be in his shoes। तो उसको पूछा तो वो उसने सब बताया मेरे को कि देख ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, एंड उसने उसके हिसाब से बताया। ही wasn't really concerned about me, या फिर लाइक पता नहीं वो जो भी टाइम उसके पास मिला उसने उसके रिव्यू से बताया कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, एंड उसने सब मेरे को अच्छे एस्पेक्ट्स बताए, लाइक बस परफेक्ट, लाइक अरे भाई तू इधर आ जा, मजा ही है यहाँ पे, तो तू समोसा भी खा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, फुल अच्छा है। मैं समोसा मिलता है, ये मेरे को वहां से पता चला कि अच्छा, मेरे को लगा कि भाई कभी नहीं मिलेगा अभी जिंदगी में, बट हाँ, तो आई वाज लाइक वेरी साले हैप्पी। समोसे के लिए यूएसए गया। वो अभी एग्जांपल ऐसे ही मेरे को याद आ मेरे गया क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसने नहीं बोला मिलता था। था। तो सॉरी, तो उसने ऐसे बताया रे, एंड देन आई वाज लाइक आई केम विद दैट फ्रेम कि भाई ये बेस्ट है, अभी साले मजे आने वाले हैं। मैं समोसे के पिक्चर कर रहा हूँ, मतलब ये बात कर रहा है समोसा यूनिवर्सिटी, ये मेरे यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा था, मैं सच अलग में नहीं मिल दिल्ली रहा है, लाइक यूनिवर्सिटी मैंने 2 साल, मेरे तुझे भी पता है, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, बाहर मिलता है आई ऐसे। हैड टू गो टू सिएटल, लाइक 5 घंटा ड्राइव करके जाना पड़ता था अगर इंडियन फूड खाना है बाहर, बिकॉज मेरे यूनिवर्सिटी में और आसपास कहीं पे भी इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं था, 5 घंटा दूर जाना पड़ता था। ये थोड़ी अच्छी चीज है सैनोज के बारे में, यहाँ मिल जाता है लाइक वहाँ अच्छा पे ऑलमोस्ट इंडियन। 50% रेस्टोरेंट इंडियन ही है। हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट स्टोरी राइट, तो उसने मेरे को बताया कि सब अच्छी अच्छी चीजें बताई, एंड मेरा तो माइंडसेट प्रिपेयर हो गया यार कि अभी तो मतलब ठीक ही है, मैं सब फिगर आउट कर लूंगा, उसने बताया ऐसे तो इतना कोई डिफिकल्ट होगा नहीं। एंड देन आई केम हियर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, एंड पता नहीं आई वाज स्टिल इन दैट माइंडसेट रे कि स्पून फीडिंग हो जाएगा, और लाइक मतलब पता चलेगा, अब मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो प्रोफेसर फिगर आउट करने में मदद कर देंगे। एंड वो एकदम से मेरे को हिट हुआ रे, ओ माय गॉड, अभी इन लोगों को एक्सपेक्टेशन है मेरे से, जैसे भावेश ने बोला यू हैव टू फिगर इट आउट, दे विल नॉट टेल यू व्हाट इज लाइक, देखो अगर आता नहीं है बेसिक्स तो यू हैव टू स्पेंड द टाइम एंड लर्न इट एंड देन डू एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही मतलब अभी प्रेशर बन गया यार इस चीज का, अभी इट्स डिफिकल्ट हो रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट गया, इवन व्हेन द कोर्सेज वेर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट जस्ट टू बी इन दैट माइंडसेट राइट, आई वाज नॉट इन द करेक्ट माइंडसेट, मैं अलग ही अपने जोन में था। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा थोड़ा ये हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर आई स्पेंड इन बैलेंसिंग, लाइक मूविंग कमिंग टू दैट माइंडसेट कि भाई अभी मास्टर्स वाला स्टूडेंट हूँ मैं, नॉट एनी मोर बैचलर स्टूडेंट। तो या वो एक एजुकेशन का डिफरेंस मेरे को वहां पे पता चला कि ओके नहीं, दिस इज नाउ डिफरेंट एंड देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव टू फुलफिल। which is good यार। या तो वही है। that was So, uh, कीपिंग एजुकेशन असाइड, सो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन तुझे क्या लगता है कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? कल्चरल डिफरेंसेस तो है ही यार, लाइक वो मतलब अपने कल्चर मम्मी शॉक पापा हुआ के। क्या तेरे को जब तू यहाँ पे आया तो? यस यस, बहुत ज्यादा। तेरे को हुआ बताता सच हूँ में यार? इंसिडेंट। हाँ, तेरे को हुआ मतलब टू बी मेरे को ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं हुआ, बीइंग वेरी इट्स लाइक फ्रैंक। मोर ऑफ लाइक इंडियंस बहुत है, तो कैसे मतलब कल्चरल शॉक, इवन कुछ चीजें एक्सपेक्टेशन से। आई वुड से मे बी जो मेरे को शॉक हुआ वो कल्चरल नहीं बोल सकते, इट्स मोर अबाउट लाइक द वे लाइफस्टाइल। दिस लाइफस्टाइल वर्क्स। यहाँ तो मैं हाँ। लाइक एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे को लाइक काइंड ऑफ शॉक था। तो मैं पहले दिन आया यहाँ पे, मैं फ्लाइट से लैंड किया और मेरा एक दोस्त रहता था यहाँ पे, उसके घर पे चला गया मैं, तो उसके यहाँ पे मैं लाइक आराम आराम किया, खाना वाना खाया, और फिर उसके गैलरी में गया मैं, और उसके गैलरी में से ऐसा रास्ता था बाहर जहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां चल रही थी। सो आई वाज लाइक मैं जैसे ही गैलरी में गया, सम पीपल वेर वॉकिंग ऑन दैट फुटपाथ राइट, और मैं ऐसे ही मतलब देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो मैं उन लोगों को नोटिस कर रहा था। तो वो चले जा रहे और फिर ऐसा सीधे गए, एंड देन वो फिर ऐसे वो अपना क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल, यहाँ पे यूएस में जो सिग्नल होता है ना, वहां से मुड़े वो। सो आई वाज लाइक यार ये इतना लंबा क्यों जा रहे हैं सब लोग, सीधा सीधा बीच में से क्यों नहीं जा रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट वो उसने मेरे को बोला भाई यहाँ पे ऐसे नहीं, इंडिया जैसे नहीं चलता है कि तू कहीं से भी बीच में से निकल जाएगा, यहाँ पे या प्रॉपर सेट तुझे ऑफ बटन रूल्स प्रेस होते हैं। करना पड़ता है एग्जैक्टली, क्रॉस करने से दैट्स पहले। लाइक ये भाई ये दुनिया क्या है भाई, हमने तो कभी देखा नहीं है ये नया ही है राइट कुछ तो। राइट या राइट लाइक राइट। दैट वाज डिफरेंट। that was like one thing I was like अरे यार ओके नाउ दिस इज कंप्लीटली मतलब डिफरेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा अलग है। हैबिट ये चेंज एग्जैक्टली। करना पड़ता है, हैबिट्स चेंज हैबिट करना चेंज पड़ता कर, एग्जैक्टली लाइक यार मेरा मेरा ऐसा था ना, मैं आ गया यहाँ पे एंड आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन फॉर मी नाउ, दैट वुड बी लाइक
for you guys you had this expectation somewhat and तुम लोग को कुछ expectations meet हुए भी होंगे. I think depend upon the state as well. Like शायद भावेश ने देखा होगा और भावेश को लगा होगा ये गाँव है यहाँ पे, because you must have had expectation कि लंबी buildings, US लंबी buildings. Did you know it already even before coming कि तू नहीं, मुझे जहाँ नहीं जाए? पता था. हाँ, because even गाँव for था. me मुझे यार just a normal common Indian person for me, I thought Western countries are just like US. Building, Every body country. Yes. हाँ, exactly. Body building. That is हर just जगह New बड़ी York. बिल्डिंग है. That is just New York and That is just Chicago. New York. Exactly. Like I didn't know, and I had this expectation कि ऐसी ही है. यहाँ पे आया नॉर्मल, यू नो, लाइक मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ज्यादा बड़े लंबे बिल्डिंग्स होंगे यूरोप से. ठीक है, तो वही मैं देख रहा हूँ, नॉर्मल है एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे घर वाला कॉन्सेप्ट है, हर जगह घर है, तुम्हारा बैकयार्ड है, फ्रंट यार्ड है, वैसा वाला चीज. एंड इट वाज लाइक टोटली डिफरेंट थिंग फॉर मी, मतलब कि मैंने कुछ अलग ही एक्सपेक्ट किया था और यहाँ पे कुछ अलग ही मिला. तो वो काइंड ऑफ कुछ चीज थोड़ा सा ऐसा है ना, अपने को कुछ दिखाते हैं और अलग शॉक हो जाता है ना कि अपने को. और ऐसे था कि इवन लाइक आफ्टर कमिंग ईयर ऐसा लगा कि यूरोपियंस थोड़े अमेरिकन को इतना मानते नहीं है. तो हाँ, मतलब उनको थोड़े दिमाग में जाता है अमेरिकन लोग. तो ये चीज मैंने समझ लिया यहाँ पे. Nice. और तो फिर मतलब तो एक तो और भी ये कल्चरल शॉक मैं बता सकता हूँ, मतलब मेरे को याद है ऐसे, यहाँ पे जो बस सिस्टम होता है, मतलब आई थिंक ये रूल इंडिया में भी है बट कोई फॉलो नहीं करता. लाइक बस के जो दो डोर्स होते हैं, लाइक द फ्रंट डोर वहां से एंट्रेंस है और फिर जो बैक डोर है वहां से क्या बोलते हैं उसको, तुम बाहर जा सकते हो, राइट? आई थिंक ये मुंबई में तो यही है ना, बीएसटी बसेस में नहीं है. हाँ, तो मतलब अभी पता नहीं, मैं इतना बस से ब्रो, ट्रैवल नहीं किया मुंबई इंडिया में में. पीछे से चढ़ता है तो और आगे से उतरता है. हाँ, मतलब कोई ओके, बोलता नहीं मैंने है ना कभी तेरे को ट्राई. कुछ, राइट? लाइक इट्स नहीं लाइक नहीं देयर नहीं, इज अ क्या रूल बट मुंबई में कैसे होता है पता है? अगर तू आगे से चढ़ने को ट्राई किया, डंडा आता है बीच में. वो जो अच्छा. ओके, इंटरेस्टिंग. ड्राइवर के पास है ना एक मतलब ड्राइवर के पास ऐसे कुछ एक रस्सी होती है, वो रस्सी खींचा और डंडा ऐसे स्लैंट होता है, तुम ओ, कैसे चढ़ पाओ? ओके, मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया तो पता नहीं. बस ओके, से और कभी ट्रैवल नहीं किया, बीएसटी से? नहीं, मैं मोस्टली ट्रेन से या फिर कैब से करता था. तो ठीक है, तो ठीक तो है. सीन ऐसा है मतलब यहाँ का सिस्टम में ऐसा है कि तू फ्रंट से जाएगा, वहां पे एक मशीन होता है जिसमें तेरे को टिकट लेना पड़ता है और फिर तू पीछे जाता है. अब ये पता नहीं ना यार, पहला बंदा जो किसको कुछ नहीं आइडिया कहाँ से आया वो इंडिया से, तो उसको क्या समझेगा. तो हम बस रुकी, हमको कोई बैकग्राउंड नहीं, हम चढ़ गए भाई अंदर डायरेक्ट. तो सब लोग हमको घूर रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ा हैबिट है, लाइक इमीडिएटली तेरे को कोई बोलेगा नहीं, सब घूरने लग जाते हैं एकदम से. यू गेट दैट कॉम्प्लेक्स, लाइक भाई मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया, ये तो बिल्कुल पता होता है बट क्या किया वो नहीं पता ना अभी तक, तो अभी करे इसको कैसे फिक्स. और तू इतना वोकल होता भी नहीं कि तू उनको डायरेक्टली पूछे कि व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट टेल मी, ऐसा कुछ. तो वो ऐसा बहुत ही वियर्ड सिनेरियो बन जाता है वहां पे कि भाई अभी करना क्या है नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू. और उनको लगता है, उनको नहीं पता ना तू नया आया है करके, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, इज जस्ट अनदर हाँ इंडियन हु इज एग्जैक्टली. लिविंग हियर. तो वो भी तेरे को ऐसे लाइक उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि इसको पता कैसे नहीं है कि अंदर से चढ़ना है करके. तो पहली बार तो पता ही नहीं चला रे, और रुकी है बस और सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा कुछ. तो भाई हम उतर गए वापस नीचे, हमको लगा भाई कुछ तो गलत कर दिया हमने, उतर गए डायरेक्ट नीचे हम. लाइक वही अभी फॉल बैक मैकेनिज्म और क्या होता है इंसान का, वापस जहाँ थे वहां चले जाओ, मतलब ठीक हो मतलब जाएगा फिर. मेरा तो अच्छा फॉल बैक मैकेनिज्म था ब्रो. मेरा सेम बस वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैं पागल जैसा. ठीक है, आई वाज लाइक कि यही कॉन्सेप्ट है कि आगे से चढ़ना और पीछे से उतरना है. आई डिडंट न्यू एट ऑल. ठीक है, अब मुझे मुंबई वाला कॉन्सेप्ट पता है, पीछे से चढ़ना है आगे से उतरना है, मुझे लगा यही होगा. ठीक है, और तो मैं दरवाजे से खुल गया, कुछ लोग उतर गए, मैं चढ़ रहा था और ऐसी सीन कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और एक ही इंडियन बंदा बस में चढ़ रहा है और सब गोरे लोग उसको देख रहे हैं. तो मेरे लिए ऐसा था कि यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा इमिग्रेंट को ऐसा देखना अच्छी बात नहीं. बस में तो चढ़ रहा हूँ और कुछ कर तो नहीं रहा हूँ मैं. तो ठीक है, तो रेसिज्म. मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता था. But that's what I felt in my mind, पागल इंसान, सब I लोग didn't play रेसिस्ट the है यार. racism. I didn't play the racism card though, but I was like, not good bro. But यस, मैं नॉट और गुड पीपल. उस शर्म के बहाने मैं पीछे बैठ गया. मैं उनको मुंह भी नहीं दिखा पाया, मैं चुपचाप से पीछे बैठ गया एक कोने में, ऐसे कोने में जहाँ पे कोई मुझे देख नहीं सकता. ठीक है,
और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक्सपेक्टेशन ये किया था कि टिकट कंडक्टर आएगा। ये तो भाई ठीक, अलग ये वाला लेवल है। मैंने सुना है लोगों का। हाँ। ठीक है, मैं बैठा हूँ। कंडक्टर कहाँ है भाई? मैं सोच रहा हूँ कंडक्टर कहाँ है भाई, कोई कंडक्टर को बुलाओ। अरे भाई। फिर मैंने सोचा किसी को पूछ लो, तो बाजू में बंदा है, उसको पूछा कि हाउ टू गेट द टिकट, Ticket. मैंने वो भी नहीं पूछा कि वो बोला कि कंडक्टर बोलूंगा तो पता नहीं, वो बोलेगा व्हाट्स दैट वगैरह। तो एग्जैक्टली लाइक कंडक्टर का मीनिंग अलग ही हो जाता है ब्रो। इट्स जस्ट अ मीडियम। ठीक है, तो वो बोला कि यू हैव टू गेट द टिकट इन फ्रंट ऑफ देयर। तो मैं बोला ओ, ओके यहाँ पे कंडक्टर सिस्टम नहीं है। मैं ऐसे दिमाग में है ना फालतू कुछ अपने ये लगा रहा हूँ, सिमुलेशन लगा रहा हूँ। हाँ, बिकॉज इनकी कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो कंडक्टर की जरूरत नहीं है, एनालिसिस मोड ड्राइवर ही ऑन। हाँ, फुल फुल एनालिसिस हो रहा है। फिर ऐसे चलते चलते मेरा एनालिसिस चल रहा है, ओ तो मे बी इसलिए ड्राइवर ही इनका कंडक्टर है। अरे भाई। अभी मेरे पास 10 यूरो थे, ठीक है, 10 यूरो का करेंसी था और टिकट हार्डली 1.5 यूरो का था। अभी हाँ। मैंने एक्सपेक्ट किया अपना ये कंडक्टर भाऊ है, कंडक्टर मेरे को बाकी पैसा भी देगा। मुझे ये नहीं था कि यू हैव टू हैव एग्जैक्ट चेंज और एल्स यू हैव टू यूज द कार्ड। ठीक है, तो पहले मतलब वहां पे चला गया, वो ड्राइवर मस्त ड्राइविंग कर रहा है एक तो, और यहाँ के ड्राइवर भी एकदम क्लासी है, मतलब लगे मेरे से, मतलब लगे कि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एकदम क्लासी ड्राइवर, सूट वूट में टाई वाई पहन के पूरे ऊपर, ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, अपने इधर ऐसे ड्राइविंग कर रहे पूरा। नहीं, ये एकदम आराम से चला रहा है। ठीक है, और इसका चलाते चलाते मैंने बोला एक्सक्यूज मी, वो मतलब थोड़ा सा वो हो गया, लाइक वो क्या हो गया, ऐसे सरप्राइज हो गया डिस्ट्रैक्ट। करके। हाँ हाँ एग्जैक्टली, लाइक डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा, तो वो चला रहा है, कुछ रोड था एंड आई वाज लाइक व्हाट्स अप, और बोला कि कैन आई गेट अ टिकट फॉर दिस स्टॉप। तो वो बोला कि why don't you get while you entered। तो मैं बोला because I didn't know। तो बाद मुझे में वो बोला कंडक्टर कि चाहिए। हाँ, तो बाद में मैंने उसको 10 यूरो दिया, गेट द चेन। वो एकदम भड़क गया था, और फिर बाद में बोला आई डोंट हैव चेन, जस्ट गेट डाउन एंड गेट द चेन ऐसा बोला। फिर कहीं ने उसने उतार दिया। अब तेरा फॉल बैक मैकेनिज्म था कि तू उतर गया था, मेरा फॉल बैक मैकेनिज्म ऐसे हुआ कि उसने उतार दिया। और मैं वो स्टोरी का थोड़ा कंटिन्यूएशन बताता हूँ। तो फिर ये सब हो गया एंड देन फिर हमको किसी ने बताया कि ओके ऐसे करना होता है, ये करना होता है। फिर लाइक जिंदगी नॉर्मल चलने लगा सडनली। फिर 3-4 महीने बाद अभी यहाँ पे होमलेस लोग होते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहेगा होमलेस कौन होते हैं, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, सैन होजे डाउनटाउन। तो यहाँ पे लाइक होमलेस लोग बहुत ज्यादा, लाइक तेरे को हर जगह पे कोई ना कोई मिलेगा ही होमलेस। होमलेस लोग वो होते हैं जिनके पास घर नहीं है और लाइक बाहर ही रह रहे हैं। एंड क्या बोल सकते हैं उनको, लाइक वो थोड़े उनके पास वियर्ड कभी होते हैं। कभी कार भी होता है, कार में रहते हैं कोई कोई। हाँ, मतलब वो ऑल भाई सॉर्ट्स ऑफ जुगाड़ अलग उनके। अलग ही लेवल के, अलग ही लेवल के होमलेस है वहां हाँ, पे। और वो थोड़े लाइक बहुत सी बार मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं वो लोग। लाइक वो कुछ मोस्टली तो बोल देंगे तेरे मोस्टली। को, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लाइक पीपल इग्नोर देम। तो हम्म। हुआ ऐसे कि 3 महीने बाद मैं सेम अपना कॉलेज जा रहा हूँ वही बस से। अब मेरे को समझ गया कि आगे से आना होता है, टैप करके इधर बैठना होता है, तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। एंड सडनली एक होमलेस बंदा पीछे के डोर से एंटर कर दिया, और सब लोग उसको वैसे ही घूर रहे जैसे मेरे को घूरा था पहले टाइम। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। अब नाउ नाउ द डॉट्स आर कनेक्टिंग। अब मेरे को समझा कि ओके क्या है ये सीन। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कैसे होता है पता है, आई डोंट नो हाउ यू यूज्ड टू ड्रेस, बट द वे आई यूज्ड टू ड्रेस, और आई यूज्ड टू मतलब कैसे पता है, चीप जैकेट लेना, चीप विंटर जैकेट लेना, चीप दिख जाता है ना कि चीप विंटर जैकेट है, और वैसे हुडी वुडी वो सब पहनना। तो मतलब कैसे होता है, जो एक इंडियन, आई डोंट वांट टू, वो मतलब जो एक स्टूडेंट होता है या फिर मैं था, I was like exactly matching to the homeless apparel, यहाँ भी homeless apparel यही है कि Oh सेम वो my God. पेनिस का एक जैकेट मिलता है 12 यूरो में, वो भी वही पहनते हैं, मैंने भी वही लिया था। वो बड़ा शॉकिंग था भाई, बस का इंसिडेंट आई कांट फॉरगेट एंड दिस इज वेरी फनी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। बट उस लाइक दिन मेरे को ये यही समझा। मतलब मेरे साथ कैसे कि भी एक हुआ, मेरे साथ हुआ बर्गर में। तो मैं यहाँ पे गया था मैकडोनल्ड्स में, ओके। और बहुत भूख लगा था रे, मैं मतलब ऑलमोस्ट दोपहर का खाना नहीं खाया था, 2-3 बज गए थे दोपहर में। तो मैकडोनल्ड्स में गया, तो मेरे फ्रेंड ने बोला चीज बर्गर खाते हैं, यहाँ पे चीज बर्गर मिलता है। मैंने बोला ठीक है चीज बर्गर खाते हैं, चीज बर्गर में तो हमने चीज बर्गर ऑर्डर किया। मेनू वेनू देखा नहीं रे, बहुत भूख लगा था, जाके ऑर्डर कर लिया चीज बर्गर आ गया, फ्राइज कोक सब खा रहे हैं। खाने के बाद एक फ्रेंड बोलता है अरे इसमें तो बीफ है।
तो क्योंकि फिर हम लोग को पता चला कि वहाँ के बर्गर्स में बाय डिफॉल्ट बीफ होता है. I think the first beef that you eat is by mistake. Like तूने तुषार तूने हुआ है तेरा beef consumption? नहीं मतलब फॉर्चुनेटली मेरे को किसी ने बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो उससे बच गया मैं। हाँ, ये मुझे ये नहीं पता था और सेम मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था. हमने साथ में खाया और फिर रैपर पे लिखा होता है 100% बीफ, तो बाद में पता चला कि वो बीफ है. पूरा खा लिया था, मीट इज पता भी इक्वल नहीं टू चला. बीफ फॉर दीज गाइज, और अपने लिए मीट चिकन होता है पहला यूजुअली। तो वो मतलब हुआ. तो दैट वाज मतलब वेरी शॉकिंग और for 2-3 दिन non-vegetarian मजा नहीं like आया. me, ऐसा अजीब लगा. meat is just बकरा वो होता है. हम्म. Chicken is chicken, but हाँ, So we I were can vegetarian, understand from right? a vegetarian Hmm. We are perspective. vegetarian. Yeah, you were vegetarian. No, No, he's I'm still vegetarian. vegetarian. I'm still Yes. vegetarian. Okay. What? Yeah. Yes. Okay. Yeah. तो हाँ उसके बाद हम लोग हाँ क्या बात कर रहे थे यार ये वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट ही घुस गया अभी बीच में. अब दैट्स अ गुड कांसेप्ट टू टॉक ऑन कि यहाँ पे लोग हाँ. ऐसे बताते हैं ना कि इंडिया को में लगता है कि यहाँ पे बहुत वीगन लोग घूमते होंगे एंड ऑल. यहाँ पे इतना कुछ वीगनिज्म नहीं है. यहाँ पे तुम्हें जाओगे तो एक टोकन कोई वीगन का डिश मिल जाएगा जो भी खाली घास फूस होता है और कुछ नहीं होता है. Yes. तो आई थिंक आपको हर चीज मिल जाता है लाइक हर चीज के तुमको है ना. या द बेस्ट थिंग अबाउट वेस्ट इज लाइक यू हैव लाइक दिस वैरायटी ऑफ ग्रुप्स और उन वैरायटी ऑफ ग्रुप्स के लिए वैरायटी ऑफ चीजें अवेलेबल भी है. ग्लूटेन अवेलेबल फ्री है Not बट necessarily. नॉट नेसेसरीली. अभी तुम हाँ. यहाँ पे घूमने जाओगे लास वेगास में, यू विल नॉट गेट एनीथिंग. तुझे वहाँ पे सिर्फ यही मिलेगा, नॉन वेज ही मिलेगा क्योंकि वहाँ पे क्यूजीन ही वही है. वहाँ पे ओह लोग ओके ओके. वीगन खाने थोड़ी जाते लोग लास वेगास में, यहाँ के जो लोग हैं. बट नहीं आई थिंक वहां पे होगा चीज अभी मैं अवेलेबल वही हुआ बोल रहा है. हूँ, एक टोकन डिश होता है जिसमें घास फूस होता है, थोड़ा सा सोए वो टोफू डाल देते हैं और वो 1-2 सॉस डाल देते हैं जिसमें एग होता और है. वो जो ऐसा डिश जो लाइक दिन में उनके पास 2 कस्टमर आते होंगे बोल के भाई मैं हाँ भी हाँ हाँ दे दे सेम कुछ खाने सेम. के लिए, ऐसा है वो। हाँ तो ऐसा मैंने हाँ देखा है. तो इसलिए इफ यू आर लाइक वेजिटेरियन इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू. तुम्हें खुद का खाना बनाना पड़ेगा. And if you go Yes. into cities जहाँ पे Indian stores नहीं है, and it will be really more difficult. This is actually a good but point then in a way it's a good point. Yeah, I was just to coming discuss down to कि the same thing. खाने का क्या सीन है यहाँ पे और कैसे मैनेज किया मास्टर्स के लिए। I want to talk about it. बहुत ही नहीं इंटरेस्टिंग but टॉपिक that's the thing ना. देख ना we came from like mama's boy और अभी देख प्रॉपर इंडिविजुअलिस्टिक बंदे हो गए. We didn't really came from mamas, but देख हम 2 साल पुणे Like में भी अकेले रहे. not really हाँ क्योंकि हम मतलब 2 साल पुणे में रहे. टॉकिंग बट फ्रॉम इंडिया में तुषार तो बचपन से मतलब वो बाहर ही रहा आई है. थिंक आर्मी का ट्रेनिंग लिया है उसने I'm a अलग लेवल disowned का. child. Yes. Self-deprecating joke there. But like India में, even if you are not mama's boy, the thing is things are easily accessible. Like True. तेरे को खाना खाना है, काम वाली भाई मिल जाएगी, पैसा दे दे हम्म. उनको, वो कर देंगे. या फिर तेरे को भूख लगी है, ठेले पे जाके चाय पी ले, वड़ा पाव खा ले. Like too many things. Accessibility इतना हाँ ज्यादा मतलब है देयर कि इज सो कुछ मेनी प्रॉब्लम ही नहीं है सर्विसेज खाने एट के लिए. सच अ चीप लेवल. हम्म. लाइक कितना चीप में मतलब तेरे को इवन अगर एक 15,000 की सैलरी भी है स्टिल यू कुड गेट द सर्विसेज. मतलब स्टिल यू कुड अफोर्ड द सर्विसेज लाइक तू मेड लगा सकता है, तू बाहर नाश्ता कर सकता है, वो सब चीजें. True. एंड एंड लाइक लोगों को ऐसे भी लगता है कि यार ठीक है थोड़ा पैसा ज्यादा डालेंगे तो यूएस में सेम चीज यू कैन लाइक काइंड ऑफ रेप्लिकेट, बट दैट इज नॉट ट्रू. मतलब दैट इंडिया इज नॉट ट्रू. मैं बताता हूँ कि लाइक मेरा आज भी लाइक द वन ऑफ द थिंग दैट आई मिस अबाउट इंडिया. मैं पुणे में रहता था राइट, तो मेरा वीकेंड का शेड्यूल बताता हूँ मैं क्या करता था. आई वाज लाइक 11-1 बजे 11-12 बजे उठता था. उठ के जाके जैसे ही मुंह धोया, गाड़ी पे बैठा, थोड़ा ही दूर गया ऐसे लाइक 1 किलोमीटर, शायद 1 किलोमीटर भी नहीं, लाइक 500, तो भी मैं गाड़ी से जाता था. लाइक चल के जा भी सकता था बट तो भी मैं गाड़ी से जाता था. और वहां पे मस्त वड़ा पाव खाता था, चाय पीता था, पोहा, साबूदाना, ना दुनिया भर के ऑप्शंस. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे होता हूँ ना, तो आई विल टेल यू व्हाट आई डू. मैं वीकेंड को सेम 11 बजे उठता हूँ और लाइक मेरा अंदर का इंसान अभी भी एक्सपेक्ट करता है यार काश वड़ा पाव या कुछ ऐसा मिल जाए. फिर एकदम आई रियलाइज कि नहीं, अभी मैं यूएस में हूँ. फिर मैं खुद जाता हूँ किचन में, चाय बनाता हूँ, देखता हूँ कुछ है क्या, ब्रेड वेड खा के वही खा के फिर वापस ये हो जाता चालू. हूँ. एंड इवन इफ आई वांट टू डू दैट, नहीं है ना यार ऑप्शन यहाँ पे. मतलब अगर मेरे को क्लोजेस्ट होटल में भी जाना है तो वो भी 2 किलोमीटर दूर है, उसके लिए कोई ना कोई और तेरे मीडियम को ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता है. मिनिमम तेरे को $15 तो डालने उसके ऊपर लिटरली, विच इज राइट. लाइक एंड चल ठीक है $15 में डाल भी दूं मेरे पास है तो, बट यार लाइक तू वो तुझे मजा नहीं कार आएगा ना. चाहिए यहाँ पे हाँ. कार. हाँ एक और थिंग यहाँ पे जो कल्चरल डिफरेंसेस है, यहाँ पे कार सबसे इंपॉर्टेंट है. लाइक एवरीबडी हैज अ कार, इवन होमलेस पीपल हैव अ कार हियर. इंडिया में वैसा नहीं. इंडिया में कैसे तुम्हें जरूरत है मतलब या फिर साले कार इज अ तुषार तो लग्जरी होमलेस से भी स्टेटमेंट कम इन है. इंडिया.
क्या? तुषार तो होमलेस से भी कम है। Hmm. क्या फायदा अमेजोन में जॉब नहीं। करके अभी? Another self-deprecating joke from Prasad. Thanks for trash talking about me. हाँ, नहीं तो नहीं, मैंने यहाँ सेम पे ये ब्रो, नोटिस सेम किया कि होमलेस इफ वे। तो मैं अकेला रहता हूँ ना, तो अभी इफ आई डोंट हैव अ कार हियर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक ग्रोसरी नहीं लेने जा सकता क्योंकि मेरे यहाँ से वॉलमार्ट है 2 माइल दूर, मेरे यहाँ से इंडियन स्टोर है 3 माइल दूर, तो मैं वहां पे जाऊंगा और उबर करूंगा, मतलब अगर हफ्ते में मैं 1-2 बार भी जाऊं तो उबर का $20-30 ऐसे मेरे महीने का उतना ही हो जाता है जितना मैंने कार लिया मैंने। तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी है ना यूएस में, लाइक यूएस में यहाँ पे कैसा पब्लिक सीन है? ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली, लाइक बट ये यूरोप में सीन नहीं है। यूरोप में हम्म, इवन इफ यू डोंट हैव कार, स्टिल यू कैन रीच कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, एटलीस्ट द हम्म, सिटी, एंड इवन इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द सिटी और समवेयर एल्स, you have हम्म, mediums, like, and हम्म, to be honest not too costly. Like I've heard about US की तेरे को प्लेन लेना पड़ता है यार, बसेस तो बहुत ही महंगे होते हैं तुम्हारे इधर। नहीं बसेस महंगे नहीं, बट आई थिंक इट्स नॉट बसेस लाइक। मैंने देखे, मतलब बसेस मतलब ऐसे तो लोकली मिल जाएंगे अगर यूनिवर्सिटीज में है तो, लेकिन उसके बाहर तुझे उतने नहीं मिलेंगे, सबर्ब्स में वो सब में तेरे को उतना बसेस नहीं मिलेगा और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा अगर होगा तो भी। तो यहाँ पे मतलब वो कल्चर ही नहीं है, यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कल्चर है ही नहीं, अगर होगा तो भी लोग नहीं यूज करेंगे बिकॉज उनके पास कार है, सो व्हाई वुड दे यूज इट। मतलब यहाँ पे इंडिया एक में घर में 3 कार है। इंडिया में लेट से तेरे को मुंबई से राजस्थान जाना है तो यू कैन इधर टेक अ प्लेन या गाड़ी कर सकता है या ट्रेन से जा सकता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मेरे को कैली प्लेन से लेट से सैन होजे से न्यूयॉर्क जाना है तो मेरे पास प्लेन के अलावा ऑप्शन नहीं है कोई, उस वही एक ऑप्शन है। ऑप्शन है लेकिन फिर बहुत दूर भी है ना। कैसे, कौन सा ऑप्शन है? मेरे को तो ट्रेन नहीं है, लगता। ट्रेन जाता है, ट्रेन क्या बात कर रहे हैं? 3-4 दिन लगता है। ओके ओके, दैट्स नॉट रियली ऑप्शन देन। So wait, no, it's not a good it's option. And a also good plane option. is cheap. Work from train यार, Plane is cheap comparatively. which is then again also not cheap in US. if you are मतलब if मैं you are मैं if you are in यूरोप a के अगर job रेट्स, then it is cheap. If यूरोप, you are if you Yeah, have of a job course. then it is cheap. If you are a student then don't even think about it. see, basically if you are a student you have like zero social life, and which again after this pandemic we still have like zero social life. So leave it. क्या मतलब कुछ उखाड़ नहीं पाए हम लोग। And what about But so living with with different people, like people you don't know, and you go there and you live with them. So how was your experience about that? या ये एक्चुअली अच्छा टॉपिक है। एक चीज ये ये होता है बाद कि में ये पूरा बाद ले लेते हैं इसको। लेट्स जस्ट काइंड ऑफ No, लेट्स let's just say कि ये भी आएगा. You also have to consider you have to live with people you may not like or you may not get along with, but you have to adjust. And adjust is a very big part when you are a student, right? तो मेरे लिए इन स्टूडेंट आई सेंस थिंक यस। दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन, बिकॉज अगर लेट्स से ऐसा कोई बंदा आ रहा है जो पूरे जिंदगी घर पे रहा है एंड देन सडनली इज मूविंग एंड अभी लोगों के साथ रह रहा है, उसके लिए अब अलग पर्सपेक्टिव होगा। मेरे केस में मैं बताता हूँ, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं था किसी के साथ रहने के लिए, बिकॉज मैं पहले रह चुका हूँ लोगों के साथ में, आई हैव बीन थ्रू दोज इश्यूज, लाइक क्या इश्यूज आते हैं, तो आई हैड अ फेयर आइडिया कि भाई कैसे होता है। बट हैविंग सेड दैट एक एक थोड़ा डिफिकल्टी ये हो जाता है कि मास्टर्स एंड लाइक तेरा इमिग्रेशन एंड तेरा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल, ये सब जब स्ट्रेस आता है ना, तो देन लाइक इवन द अभी तो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में चल छोटे रहा है छोटे और बातों पे भी बड़ा हो जाता है. हाँ, तो लाइक एकदम से छोटा भी कुछ हो गया ना तो वो चीज बड़ा हो जाता है। लाइक यार मैं ऑलरेडी इतनी चीजों से डील कर रहा हूँ, तेरे को समझता नहीं गया ऐसा नहीं तू एकदम ऐसे ये हो जाता है। सो दैट हैपेंड विद एवरीवन एंड वो एक चीज होता है। आई थिंक दैट इज जस्ट द लाइक सिचुएशन हियर, पार्ट एंड राइट? तू पार्सल ऑफ ऑलरेडी लाइफ। हाँ, तू मास्टर्स जब No, it's करता a है very तो यू good साइन फॉर experience to दैट। have. यप बट यप। या लाइक हिटिंग दैट पॉइंट, कैसे होता है पता है? आई थिंक every other person who is staying with you, like Abhi Tushar has been staying outside of his house since like really long time. मतलब I think what 5 साल या 6 साल कब से, या 10 साल? 5 10 साल साल तो का हमें था हो कब गया सर? रे. नहीं 10 साल का था तू या 5 Okay, साल था? okay. Age. अरे मतलब he जाने is दो like ना, वी वांट टू डिस्कस अबाउट मास्टर्स हियर। he is that Darshil Safari bro. यस यस, आई एम दैट गाय। मैं कभी ठीक है. बट हाँ, तो मेरा हाँ मतलब तेरे को तो बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग होगा, एंड आई थिंक यू हैव दैट एडजस्टेबिलिटी फैक्टर मोर देन अस। तो मेरा और भावेश का ऐसा था कि हम दोनों ही पहले रूममेट्स साथ थे, में रहे थे. First and roommate. My first roommate was Prasad. प्रसाद एंड और एक बंदा था अर्पित।
ठीक है। तो वही हम लोग तीनों का ऐसा था कि मतलब हम लोग चिल लोग थे, इट्स लाइक अ ब्रो कोड, कुछ किसी को कुछ नहीं, पर्सनल में कोई घुस नहीं रहा है, कुछ नहीं, और चिल था। एंड आई थिंक कैसे होता है पता है, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। कैसे होता है इंडिया में है ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज यू हैव सर्विसेज, यू हैव पीपल कमिंग डाउन इन योर हाउस टू प्रोबेबली क्लीन वगैरह, या फिर हम लोग कुछ कर लेते थे। तो इट्स लाइक कि तुम वो उतना ध्यान नहीं देते उस चीज पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन वगैरह वो चीज होता नहीं था, तो ये सब फैक्टर आते नहीं थे, क्योंकि मोस्टली इंडिया में कैसे होता है, कोई तो बाहर है, ज्यादा ज्यादा करके बाहर ही है घर में, और फिर कोई रात में आता है घर में, वैसा वाला सीन था हमारे इधर। कोई घर में ज्यादा रहता ही नहीं, कोई किसी दोस्तों के पास है, Yeah. कोई वैसा है। बट यहाँ पे कैसा सीन है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैनॉट अफोर्ड, तुम्हारे दोस्त, काइंड ऑफ दोस्त वगैरह तुम्हारे घर में ही बनने पड़ेंगे तुमको। They become family members almost, Yeah. you know. Yeah, actually, because it's like you are not stranded, you're like in a different country and you have like kind of family बन जाती है। तो बट मैंने एक चीज देखा है, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दोज वो लाइक बहुत ही पैम्पर किए हुए जो True. लोग होते हैं ना, पैम्पर किए Same. हुए लोग, हम्म, तो उनके साथ प्रॉब्लम होता है। लाइक Same. मतलब क्या होता है, मतलब आई डोंट नो, मतलब इफ यू थिंक, उनके अगर दिमाग के अंदर जाके तू सोचोगे, तो इट्स लाइक फॉर देम, उनके लिए उनको वही एनवायरनमेंट का बहुत साल आदत हुआ रहता है। एंड दे मतलब फॉर देम ऑल्दो दे फिजिकली वो लोग आए हैं एक नए कंट्री में, बट उनको वो एनवायरनमेंट पूरा अलग है, कि किसी के साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करना They है। don't know how to deal with people. कैसे बात करना है, कुछ चाहिए तो एग्जैक्टली, कैसे मतलब अप्रोच छोटी छोटी करना चीजें है। तुमको ये होती है कि उनको कोई लगता है कि हमारा हक है हर चीज। हाँ, लाइक एक आदत क्या होती है, घर की आदत होती है कि मैंने बर्तन ऐसे डाल के चला गया बेसिन तो में। बाद में मैं हाँ। आऊंगा तो धुले हुए मिलेंगे। बर्तन धोने थोड़ी होता है, वो तो रखना होता है ना सिर्फ, उसके बाद तो अपने आप धुल एग्जैक्टली, जाते हैं, वो थोड़ी अपना एग्जैक्टली। काम है भाई। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आती है ना, मतलब कैसे होता है पता है, इंडियन ऐसे होता है कि जो ऐसे जो शादी वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो दिखते हैं इधर। Oh my God. बट ठीक है। यस, वैसे एक वाले और होता है। चीज, कुकिंग का एड्रेस, लेट्स सी, लाइक तुम लोगों को कुकिंग एक्सपीरियंस था क्या इंडिया में? मेरे को तो कुछ नहीं था, आई लाइक कंप्लीट लूप, नहीं, मैं I जीरो had zero जीरो experience. लाइक जीरो एक्सपीरियंस, राइट? तो मैं बताता But हूँ now I मेरे। enjoy cooking. सेम सेम ओके, सेम। आई डोंट एंजॉय, बट मतलब कर लेता हूँ मैं अच्छा खासा, नॉट दैट आई एम अ बैड कुक, बट हाँ, मतलब इंडिया में आई थिंक कविता 90% ऑफ द, कविता's मे बी kitchen will be 95। unhappy with you now. Kavita's kitchen, shout out to Kavita's kitchen, yes, and Madhulika's kitchen or whatever that मैं वो channel name is. देखता था, मैं वो बंदे को बहुत फैन हूँ, लाइक परांस भी नहीं, कोई तो है, परांस पे तो बिल्डर है, वो रणवीर ब्रार। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं वो करली टेल्स नहीं, सॉरी, वो करी टेल्स पे आता है कुछ, राजश्री फूड पे एक बंदा है कोई, हम्म। तो वो मुझे उसका पसंद है, वो शॉर्ट में बताता है। और यू वुडंट बिलीव, मैं इसको भी देखता हूँ, गॉर्डन रामसे को बहुत देखता हूँ, उसका स्टाइल मेरे को पसंद आता I used to. है। टाइम पास के लिए क्या चाहिए, फिर रात को कभी नींद नहीं आ रहे तो कर लो यूट्यूब पे। बताओ बताओ, मतलब देखो क्या हालत है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कभी कभी देख लेता था गॉर्डन रामसे को सोने से पहले। That's true. ओके, ये ठीक है। अलग ही लेवल पे टॉपिक जा रहा है We अभी। will discuss about all these off topics in next conversation. पक्का? Yes. बट हाँ, कैसा लाइक खाना बनाना लाइक मेरे को फैसिनेटिंग लगने लगा यार, पसंद आने लगा मेरे को। That's true. और ऐसा था ना कि जैसे वही कैसा है यार, वो मजबूरी में बनाना पड़ता था अच्छा अच्छा खाना, बिकॉज तुम अफोर्ड नहीं कर पाते ना इंडियन फूड, तुमको यार हम्म। पनीर मक्खनी वगैरह खानी है, या फिर वो खाना है, वो सब चीजें 20 यूरो डालने पड़ेंगे, या फिर बस 15 यूरो, किसके पास है इतना पैसा स्टूडेंट लाइफ में? इवन That's स्टूडेंट लाइफ छोड़ो, अभी भी नहीं अफोर्ड हो सकता, लाइक रोज रोज। Rose. मेरा मेरा ऐसा था कि मैं पुणे में रहता था, तो हमारे यहाँ आंटी आती थी खाना बनाने के लिए, ठीक है, और वो आंटी को यार हम ना बहुत सुनाते थे, यार क्या आंटी आप अच्छा खाना नहीं बनाते हो, ये कम हो गया, कुछ तो अजीब ही ज्यादा मसाला हो गया, फुल ऑन, मतलब एकदम ऐसे बिल्कुल, हम ऐसे थे कि हम पैसे दे रहे हैं ना, तो हमको एकदम टॉप लेवल का खाना चाहिए, ऐसे टाइप का। और फिर सडनली मैं यहाँ आया रे, एंड देन मैंने जब कुक किया ना, तो एकदम से मेरे को फ्लैशबैक याद आया कि यार मैं उनको कितना सुनाता था, अभी मेरे को खुद से तो इतना आ नहीं रहा है, मे बी शी वाज इन दिस सिचुएशन, वो उसका बेस्ट दे रही थी, बट वो वैसी मतलब अच्छा खाना बनाती थी, नॉट दैट वो बेकार खाना बनाती थी, बट मेरे को एकदम से रिस्पेक्ट बढ़ गया यार उनके लिए, कि आई वाज लाइक नहीं यार, ये मैंने बहुत गलत किया है। मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो
वो एक ये था होता है वो। like when you come to US you start respecting things which you never would if you were in India. ट्रू Exactly. When you come outside, or maybe just probably not even US, if we मतलब even, I mean sorry, कि not इंडिया even से बाहर. abroad, not even abroad, a person who is living by his own, okay? मतलब जो maybe buy भी नहीं ले रहा है, living by his own and cooking and But everything. that's difficult in India, na? Because you have everything, so you will You not have think everything, about. तो तुम हाँ सोचते नहीं हो, right? ये सही बात है. तो if you're like living by your own and when you start, you like really start respecting your parents कि उन्होंने कैसा डील किया, कि वो लोग काम करने के बाद भी अपने को टाइम देते थे, वो True. सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें तुमको है ना ऐसा थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक मैच्योरिटी के पास लेके जाती है. एंड ऑल्सो यू कम अप विद एन ऑ कि ये लोग ऑ इंस्पायर हो जाते हैं, हाउ दे यूज टू डू इट यार. मतलब तेरी मॉम रात को सबसे लेट सो के शी वुड वेक अप एकदम अर्ली सो दैट शी कैन मेक फ्रेश टिफिन फॉर यू गाइस. फ्रेश टिफिन हम लोग खाना बना के रख देते हैं अभी फ्रिज में. यस. True. That और is true. एक्चुअली ये अच्छा पॉइंट है, बिकॉज अभी 2-3 दिन पहले ही मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था. हम कंप्लेन करते हैं ना यार वर्क फ्रॉम होम में, यार इतना काम है, 8-8 10-10 घंटा कौन काम करता है. एंड देन सडनली यू रियलाइज अबाउट योर, आई थिंक अबाउट माय डैड. तो लाइक उनके 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 लाइफ में एक लाइक फाइनेंशियली टफ वाला सिचुएशन था एट वन पॉइंट इन टाइम. तो आई रिमेम्बर मैं जब भी घर पे रहता था, तो मैं जब भी उठता था तभी भी पापा घर पे नहीं होते थे. और फिर मैं जब भी सोने के बाद पापा घर पे आते थे. तो लाइक उनका जो भी मैं स्ट्रगल अभी सोचता हूँ, तो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो मेरे उम्र के थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है जितना मैं आज कर रहा हूँ. और मैं फालतू का कंप्लेन करते रहता हूँ इस चीजों के बारे में कि अरे यार बहुत काम करना पड़ रहा है, कोई जिंदगी नहीं है, ये वो. मेरे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगते हैं इन सब चीजों के That बारे is में जब true. That सोचता is हूँ. true. That is true. ट्रू ब्रो. एंड आई थिंक कैसे पता है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द जनरेशन. आई थिंक मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि उनके जनरेशन ने उन्होंने भी कंप्लेन किया होगा उनके एंसेस्टर्स के बारे में, नॉट एंसेस्टर्स के बारे में, उन्होंने खुद के स्टेट के बारे में. बट आई थिंक वही होता है ना कि मतलब हाँ आई नो कि हम लोग बहुत ही ज्यादा, आई थिंक वी आर लाइक वो इनिशिएट कर रहे हैं अपन ये जनरेशन की वी आर लाइक वाइनी एंड क्रीबी जनरेशन की बहुत वाइन करते रहते हैं हर चीज के बारे में, ये नहीं है यार, आज डेटा नहीं है मेरा, आज नेटवर्क नहीं है, वो सब चीजें. एंड आई थिंक बट वही है कि दैट मीन्स कि थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल काइंड ऑफ ऊपर जा रहा है, तो अलग हो रहा है. यस, आई थिंक सो. तो What's अभी the हाँ, next? but in a way like how did it change, masters in a way, how did it change for you guys? तुषार. या मेरा मैं बताता Like हूँ overall कि masters package agar, if you have to like end this conversation with that masters package, what did you learn out of this masters? आ, आ, मेरे लिए टेक्निकली जितना लर्न किया, लाइक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मास्टर्स किया है तो टेक्निकली आई एम नाउ फाइंड माई सेल्फ बेटर. बट आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई हैव बिकम, राइट. तो मतलब मास्टर्स के एक्सपीरियंस के बाद में एंड डूइंग मास्टर्स इन यूएस, आई थिंक मेरा से आई हैव बिकम मोर कंसिडरेट. पहले मैं जब भी इंडिया में था ना, तो आई वाज लाइक, अब मेरा बहुत चीजों के बारे में स्ट्रांग ओपिनियन थे कि नहीं यार ये चीज तो ऐसी होती है, अगर कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है वो उसको नहीं समझता है, लाइक बेवकूफ इंसान है और समथिंग लाइक दैट. बट अभी जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, तो लाइक नो मैटर हाउ द सिली थिंग इज, आगे वाला कोई बोल रहा है ना, तो मेरा माइंडसेट सुनता ऐसे हो हूँ. गया कि नाउ आई हैव टू लिसन, आई हैव टू थिंक इन अ वे दैट हाँ यार उसका सिचुएशन है, ही इज एक्सप्लेनिंग, मे बी देयर इज अ पॉइंट. वो मैं माइंडसेट में अपने आप चले गया हूँ कि लाइक ओके नाउ आई हैव टू बी कंसिडरेट मोर, लाइक आई हैव टू लिसन मोर, ऐसे हो गया. एंड आई थिंक ये इसलिए हुआ है बिकॉज इधर आने के बाद में आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिड नॉट डू एवर इन माय लाइफ. लाइक बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो सॉल्व किए यहाँ पे आके. एंड फिर जैसे मैंने बोला कि इंडिया, फिर अभी मेरे को रिस्पेक्ट फील होता है, ऐसी जो चीजें मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था इंडिया में, उस बारे में आई नाउ फील रिस्पेक्टफुल कि नहीं, आई एम अ प्रिविलेज पर्सन कि मेरे को इतना सब मिला वो टाइम पे. तो वो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट thing that has come out of masters ki now I have more respect for people, I am more considerate, and even like ऐसा 100% नहीं हुआ है, I'm still trying to learn and Of थोड़ा course. और अच्छा करने को कोशिश कर रहा हूँ. But yeah, that has definitely improved. What for you, Bhavish? So first of all, I think
after my masters and during it, I would say I became a better person, and I became more sensitive towards other people. I was not at all sensitive when I was in India. I would never think about, okay, ये ऐसा बेचारा he is going through that, तो इसके साथ ये हो रहा होगा. I would never think about that in India. But now, after coming here, I would think about that. If somebody is going through some personal problems, तो बेचारा का कुछ हो सकता है. We should ask him कि कैसा है भाई तू. तो वो सब मैं इंडिया में कभी नहीं करता था, तो अभी करता हूँ मैं. I became more sensitive. Also, I became more mature in the way Just a कि second, guys. You continue. I'll just. So I also became mature in a way that अब if I want to do something in life, I think about it from many perspective. पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि ओके मेरे को ये करना है तो मैं ये कर लूंगा. बट अभी मैं सोचता हूँ कि ओके शुड आई डू दिस. मेरे पेरेंट्स को पूछता हूँ कि ओके आपको क्या लगता है. पहले मैं बिल्कुल नहीं पूछता था. लाइक आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि बट मेरे पेरेंट्स पहले से बहुत मुझे हमेशा से ऐसा खुला छोड़ के रखा हुआ था. सो आई वुड नेवर आस्क देम. लाइक मैंने मास्टर्स किया, मैंने उनको नहीं पूछा. मैंने मास्टर्स के बाद कार भी ले लिया, मैंने उनको नहीं पूछा, पता है. बट नाउ आफ्टर अ ईयर और सो आई थिंक अबाउट इट कि ओके उनको पूछूं क्या मैं, वैसा वाला सीन हो गया. तो became more mature, and yeah, I would say I respect others more than I used to. एक और Great, चीज great, मैं great. मैं एक और I चीज think मतलब ऐड करना, सॉरी 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 मैं एक और चीज ऐड करने का रह गया कि जो है कि आई थिंक आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट पर्सन आफ्टर डूइंग मास्टर्स, एंड उसके पीछे का रीजन बताता हूँ. सो लाइक टू गिव अ वेरी नीश एग्जांपल, इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम इंडिया, राइट? when you see यहाँ के लोगों को तो देखता है, तो यहाँ के लोग आर इन जनरल एक्सेप्टिंग. आई मीन वो मेरा एक लाइक दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट यूएस. यहाँ के लोग इन जनरल एक्सेप्टिंग है. बट व्हेन यू आर लाइक इन दैट इंडियन माइंडसेट, राइट, तो हर चीज के बारे में बहुत ऐसे कॉशियस होता है कि भाई हाँ मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं, मैं ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या मैंने ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ये वो. एंड देन यू सी कि लाइक उन लोगों में भी फ्लॉ है. दे आर नॉट लाइक परफेक्ट पीपल, राइट? तू खुद को कुछ ज्यादा ही बर्डन ले रहा है खुद के ऊपर कि भाई मेरे को परफेक्ट बनना है. बट दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर. सो जस्ट बी द वे यू आर एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट right. इट. सो अभी मेरे दिमाग में वो कभी चलता नहीं है कि अभी आई हैव बिकम आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज आई एम, राइट? मेरे को अभी किसी भी अमेरिकन या बंदा, कोई भी दूसरे बंदे से बात करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो नहीं आता कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं, या फिर उसने वो क्या सोचेगा. आई एम लाइक उसके अंदर फ्लॉज है, मेरे अंदर फ्लॉज है, एंड वी हैव टू बी एक्सेप्ट वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. True. वो एक अच्छा चीज यहाँ पे आके पता चला जो इंडिया में नहीं था मेरे पास कभी. Yeah, true. तेरा Right, बता right, प्रसाद. right. I mean, overall, I think मतलब हर एक वही चीज है कि अपना को वेस्टर्न चीज है ये जो मिस्टेक वाला चीज. लाइक वी आर काइंड ऑफ लाइक बिकॉज अपने को बचपन से वही सिखाई जाता है ना, यू कांट डू एनी मिस्टेक. अपने को वैसे ही है, तो अपन डरते थे. लाइक एग्जाम देने के लिए भी डरते थे कि मिस्टेक ना हो जाए, ना कि ये मैं अच्छे से एक्सेल करूँ इस चीज को. इसी तरह से माइंडसेट से आए हुए थे. सो कमिंग हियर व्हेन यू सी कि दे काइंड ऑफ गिव दिस ह्यूमन कॉन्सेप्ट, कि ह्यूमन टच देते हैं इस चीज को कि you are a fucking human afterwards. To err is an human. That's what it says. And उस accordingly कि कैसे कि it's okay if you do mistake. And वो वाला चीज है ना कि when you have that relaxation and thing in your mind कि okay अगर मैंने mistake किया तो भी चलेगा, बट मैं एक ट्राई तो करूंगा, जाके स्टेज पे बात करूंगा. लोग शायद हंसेंगे पर हंसते भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट करते, वो सब चीजें करते. तो इन अ वे यू गेट कि हाँ नहीं मैं नेक्स्ट टाइम ये ना अच्छा करूंगा, ये करूंगा, ना कि मैं उधर ही क्विट कर दूं, ये वाला चीज. और जैसे तुम लोग ने बोला, एंड ऑल्सो एक चीज कि यहाँ पे तुमको सबको पता ही होगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में यू हैव दिस लाइक तुमको वो रेफरेंसिंग देना पड़ता है हर चीज को. कोई भी तुम पेपर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, तो रेफरेंसिंग. तो उसने मेरा माइंडसेट अलग ही वे से बोल बताया. कैसे पता है, अपन असाइनमेंट्स कैसे इधर इधर से छाप वाप के करते थे. तो यहाँ पे कैसा, इफ यू आर गिविंग सम पॉइंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, तो ये पॉइंट तुम्हारा फैक्चुअली कितना राइट है, और ये तेरा आइडिया कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, इन अ वे तुम एक फैक्ट्स और डेटा के साथ उसको रेफरेंस करते हो. तो ये वाला चीज मैंने इतने लाइक हमको इतने ऐसे राइटिंग, बिकॉज आई वाज लाइक अ बिजनेस एंड टेक्निकल stream, we had to write so many essays. essays बहुत लिखने पड़ते थे हमको, हजार वर्ड 2000 वर्ड, और हर चीज का ऐसे का एक फॉर्मेशन होता था. तो इतने एसेस लिखने के बाद है ना एक माइंडसेट चेंज हुआ कि अगर किसी कुछ कुछ बात करनी है ना, तो
मतलब किसी भी चीज को कॉज को सपोर्ट करना है, बात करना है, फैक्ट्स और डेटा ये होने चाहिए मेरे पास, फिर मैं बात करूंगा। ये अलग ही मेरा माइंडसेट हो गया उसके बाद। तो तो वही है, तो इट हेल्प्स इन अ वे कि कोई इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं ना, इवन योर डेली इमोशनल फैमिली इश्यूज, उसके साथ भी तो ये फैक्ट्स और डेटा वाला चीज डाल देता है ना, तो लाइफ थोड़ी इजीली, लाइफ के प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होते हैं इन अ Get more कंसाइज वे। clarity about thing, right? Clarity. You move away from that एग्जैक्टली, confusion. राइट। तो आई थिंक yeah, it was really a great conversation. I'm pretty sure we must have crossed 2 hours or something, I don't know. Almost. Yeah, around 2 hours, I think. So we had initiated thinking that it would be 1 hour, but yes, I hope you guys have watched this till the end. And any end abouts that you want to say, Bhavesh and Tushar? मैं तो यही बोलूंगा कि if you think you're confident enough कि you want to grow in life, and you think you have the necessary skill, go for it. Do masters, it's really good. And work hard while you're doing masters, get a job and get a good job, and after that your life will be very nice. You really have to work hard after that also, but I would say your life will be much better if you didn't do it. What about you, Tushar? Yeah, good discussion, man. I mean, इसके आगे और भी 2 घंटा हम बात कर ही सकते हैं, इतने सारी चीजें बात करने के लिए। एंड थोड़ा कुछ कुछ काफी और काफी पॉडकास्ट के लिए रख देते हैं बाद में। यस वही है, यस फॉर श्योर। कॉन्वर्सेशंस का पॉइंट ही वही है कि एंड आई थिंक विद द 3 people थोड़ा कंटेंट भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यस हाँ, एंड आई थिंक काफी काफी ऐसे पॉइंट्स है जो हमने बात नहीं करी, लाइक वी हैड प्लान, बट अभी डिस्कशन ही ऐसे हो गया कि हम वो चीज एड्रेस नहीं कर पाए। बट या आई मीन experience wise it is awesome thing. Masters is one of the best. If I मतलब मैं जब 40-50 साल का हो जाऊंगा तो if I look back, I mean I will definitely cherish these memories. And It will be the best decision of life, right? Yeah, but of I can course. say good. Yes, it has to Yes, work. It मुझे fortunately I would say there are so many factors and variables considering. It worked for me. Probably after a few years there would be a different situation as well. You never know. We are confident on this thing right now, but it did work for me. और वही है, हर एक का किसी के बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, कोई किसी के और अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। बट इट्स वही है कि तुमको ये गेम है, गेम खेलने के लिए आना है तो उसके अलग रूल्स है, उस रूल के हिसाब से खेलो। That is true. ठीक है। So yeah, I think that was a great conversation. Thank you, Bhavesh and Tushar, for your time, and it was really good. Thank you. And hoping to see you guys again on the panel for next conversations that we would probably have. yes. All right, thanks a lot. तुषार, तू अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता है।